Welcome everyone to this very, very interesting session, which says that natural forces within us are the true healers of diseases. So we here are so curious to know what it is all about. And it is also said that the most best and efficient pharmacy is within your own system. So to have more knowledge on this and to work on ourselves rather than healing others, let us heal ourselves first. जैसे प्लेन में बोला जाता है कि पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए और फिर दूसरों की मदद कीजिए. तो this session is just about that. So we will like to invite our guest, who is a very young guest, but he's very, very experienced in this field of Marm Yoga. And this Marm Yoga has actually brought out quite anxiety into us कि हमने योगा सुना है पर ये मर्म योग होता क्या है. So calling upon Deepak Vats on the White Aura platform. Welcome, Deepak. Hello. Hello, welcome, Deepak. Hello. And thank you. Yes. Yeah. So hi, I am Nidhi Bhuradia. Myself, Rajshri Rathi. We welcome you, Deepak. Thank you so much for having me. And I really so we have a short introduction about Deepak. Mr. Deepak Vatsa is born and brought up in a small town near Rishikesh. He has been practicing Marma Yoga since childhood as it's a legacy, and later he got certified also. He has been associated with IMA, Indian Medical Association, Women Wing, has done even with Indian Association of Physiotherapists as dedicated to Fit India movement. He is been doing plenty of women fitness awareness events. He has served women health everywhere like cervical, menstrual cycle, sexual disorder, paralysis, and various other like skin care, cellulite reduction, and inch loss, which is being practiced by many actresses and artists. Mr. Deepak. Hello. Mr. Deepak has been invited by famous hockey player Deepika Thakur for women health motivation. Mr. Deepak is practicing many online courses since lockdown so that people can heal and manage their mental, physical, and hormonal stress and pain, serving people and spreading awareness of Marma culture and make them understand human body and its relation with nature is his life's ultimate goal. So we welcome you, Mr. Deepak, on the White Aura platform. And we welcome all our audience, and we hope you all benefit from this. So, Mr. Deepak, we can start with our session. Okay. So just let me help with my background. Is it okay? Can we have a volume, please? Volume. Oh, 1 second. Is that okay now? Yeah, a bit more can do. Hello. Yes, it's good. Now is it okay? Yes, perfect. Okay. Perfect now. Okay. Yes, good. We can go ahead. Okay. Thank you. So first of all, I want to thank you, both of you, and to all the participants. And this is going to be interactive session. So I request all of you to please switch on your webcam so that I can see you and we can do practice together. Okay. Thank you so much. Please, everyone, please, if you are comfortable, please switch on your webcam. This is going to be a very interactive session. So let's start, Deepak. Are we comfortable with Hindi? Yes, very much comfortable. Okay. And okay, just give me a thumbs up. I can see you, all of you. Yes. If we are okay. Very good. So,
Before I tell you about marm, we should know what is प्राण, कि प्राण क्या है। हम लोग कौन है? हम लोग प्राणी हैं। हम लोग क्या करते हैं? प्राण वायु को इनहेल करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, राइट? ओके। Deepak, sorry to interrupt, but we need the volume to be more. I don't know what is the issue here. Now is it okay? Yes, Yes, now yes. it is. So I need to hold it. Yes, yes. Please. Okay. So basically हम लोग प्राणी हैं और हमारे शरीर में प्राण है, जिसकी वजह से जीवन संभव है। और अब बात ये आती है कि अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि हमारे शरीर में हम अगर जीवित हैं तो वो सिर्फ केवल प्राण की वजह से हैं, राइट? अब बात आती है कि हमारी बॉडी में जान कहाँ होती है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। अब हम बोल सकते हैं कि ब्रेन या हार्ट भी हो सकता है। तो आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कोमा में हैं, स्टेज में, और काफी सालों से ऑन बेड रिडन है, बट दे आर स्टिल अलाइव विद द मशीन्स एंड ऑल वेंटिलेशंस। ओके, कि उनका वेंटिलेटर पर है और अच्छे से मशीनरी लगा हुआ है, दिमाग काम नहीं करता है, बट स्टिल जिंदा है। और कितने ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑन टेबल साइड में हार्ट रहता है, बट स्टिल उनको जिंदा रखा जाता है। तो शरीर में ऐसा क्या है कि अगर वहां से आपकी बॉडी की वर्किंग सही ना रहे या प्राण एलिमिनेट हो जाएं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो प्राण है कहां पर असल में? वो हमारे ना दिल में है ना हमारे दिमाग में है। दैट मीन्स योर हार्ट एंड योर ब्रेन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, किसी का हम ईसीजी रिपोर्ट अगर देखते हैं तो वो इस वे में रहती है, राइट? इफ इट इज अ फ्लैट दैट मीन्स वी आर डेड। बट एक्चुअल में ईसीजी रिपोर्ट अगर आपकी फ्लैट आती है तो वो आपकी हार्ट की कंडीशन को बता रही है, पंपिंग की, ब्लड की पंपिंग को, वो आपकी प्राण ऊर्जा के बारे में नहीं बता रही है। बेसिकली हमारे प्राण होते हैं जहां पर रावण को तीर लगा था, नेवल में। क्यों होती है? क्योंकि जब आप गर्भ में होते हैं सबसे पहले आप अपनी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू वहीं से कनेक्टेड होते हैं। आपका दिल, दिमाग, लीवर, किडनी, ऑर्गन, स्पाइन, सब चीजें अभी बन रही होती हैं 4th मंथ के अंदर, 5th मंथ के अंदर, या 2nd ट्राइमेस्टर इसके अंदर। बट उसी टाइम पे फिर भी आप अपनी मदर के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हो, आपका पल्स रेट चलता रहता है, तो सब वहीं से कनेक्टेड है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो प्राण है वो आपके नेवल में है, और जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम ताकत बोलते हैं, जान बोलते हैं, जिसके लिए हम वर्कआउट करते हैं, वो भी आपके कोर में ही होती है। ओके, तो अगर हम डिजीज की बात करें तो बेसिकली डिजीज, पहली चीज तो ये समझिए कि कुदरत ने कोई भी डिजीज नहीं बनाई है। वी आर बोर्न हेल्दी, देयर आर ओनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। मतलब हमारे जो जीवन शैली है वो डिसऑर्डर में आ गई है, और हमारी बीमारी उसी का एक रिजल्टेंट है। ओके, तो सेकंड इज कि अब मर्म जो है, आपकी बॉडी में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एनाटॉमिकली वेरीफाइड हैं। दैट मींस एमडी आयुर्वेदा या सर्जन ये सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं सर्जरी करते हुए। तो बेसिकली जब आप खुद को मर्म देते हैं तो ये एक नॉन इन्वेजिव सर्जरी ही है, और ये एक इंटीग्रल पार्ट है मार्शल आर्ट का, जो कि साउथ इंडिया में यूज होती है। कलरीपट्टू उसको बोलते हैं। अगर आप बॉलीवुड एक्टर विदु जामवाल को जानते हैं तो उनका प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं, वो इसी का प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड, ये आयुर्वेदा का पार्ट है। इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योगा, मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी, सेक्सोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इनफैक्ट भरतनाट्यम ऑल्सो, जो कि उसके अंदर मुद्राएं हैं। तो मर्म में ऐसा आखिर है क्या? मर्म बेसिकली एक रेलवे जंक्शन की तरह है। जंक्शन क्या होता है? जहां पर आपका ब्लड वेसल, लिगामेंट, बोन, मसल्स, ये सब एक जगह पर आपके इंटरेक्ट होते हैं। कहीं पर 2 इंटरेक्ट होंगे, कहीं पर 3 इंटरेक्ट होंगे। तो जिस जगह पर इंटरेक्शन हो जाएगा उसको हम मर्म स्थल बोलते हैं। और मर्म का संस्कृत में जो मीनिंग है उसका मतलब है एसेंस। एसेंस का मतलब उसका निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन, उसका जूस। बट किस चीज का? आपकी फिजिकल और नॉन फिजिकल बॉडी का। मतलब आपकी ग्रॉस एनाटॉमी और सटल एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या आती है? आपकी लीवर, किडनी, लंग्स, बोन्स, मसल्स, जो आप किसी टेस्ट में देख सकते हैं। बट नॉन फिजिकल एनाटॉमी क्या होती है? सटल एनाटॉमी, जिसके अंदर आपकी नाड़ी आती है।
अब एक्चुअली में जो नाड़ी है वो मेडिकल साइंस आज की डेट में अप्रूवल नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक विजिबल ऑर्गन नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं कि नाड़ी जो शब्द है वो बाद में जो बना है उसको बाद में नदी बोला गया है, हम जिसको इंग्लिश में रिवर बोलते हैं। नदी का मतलब चैनल। ओके, तो हमारी बॉडी में ऐसे चैनल्स हैं जिससे प्राण ऊर्जा चैनलाइज होती है, चलती है, बहती है। ओके, अब ये नॉन फिजिकल फॉर्म में है। अब आप बोलेंगे नॉन फिजिकल फॉर्म में है तो हम कैसे यकीन करें, साइंटिफिक कैसे प्रूव होगा? अब आप ये बताइए, आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो आपको फिजिकली रोड नजर आती है, राइट? जस्ट गिव मी थम्स अप इफ यू आर विद मी। वेरी गुड। हमें रोड नजर आती है तो फिजिकली प्रेजेंस है, दैट मीन्स कि वो एक एनाटॉमिकली वेरीफाइड हुआ। ट्रेन भी आपकी रेलवे ट्रैक पर चलेगी, हम उसे भी देख सकते हैं। बट जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हमें कौन सी रोड नजर आती है? बट एक्चुअल में फ्लाइट का अपना एक लैटिट्यूड होता है, एक एंगल होता है। अगर वो 1 डिग्री लेफ्ट का राइट हो जाएगी तो दूसरा कंट्री में पहुंच जाएगी, राइट? सेम ऐसे ही व्हेन यू नो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये हमने बचपन में रीड किया है। उसका अपना एक ऑर्बिट है, एक्सिस है, एंगल है। वो वहां से चेंज करेगी तो पृथ्वी विद इन ए सेकंड खत्म हो जाएगी। ओके, तो वो नॉन फिजिकल फॉर्म में है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे ही आपकी बॉडी में मेरिडियन है, नाड़ी है। ओके, और वो सब आपके नेवल से स्टार्ट होंगी। उसके बाद हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की बात करते हैं। फिर वो 1200 हो जाती हैं, फिर 3000, और उसके बाद फिर 72,000 नाड़ियां। बट वो सब स्टार्ट होती हैं आपकी नेवल से। ओके, अब आती है बात की मर्म। ये विद्या जो है बेसिकली इतनी लुप्त क्यों हो चुकी है? ये इसलिए हो चुकी है कि पहले इसके जो नोट्स होते थे, स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, वो कोड के रूप में होती थी, श्लोक के रूप में। और उस श्लोक को डिकोड करने के लिए आपको गुरु ही चाहिए जो आपको अच्छे से डिकोड करे, सिखाए, और उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन को भी ऐड ऑन करें। ये गुरु शिष्य परंपरा से ही चीजें आगे फॉरवर्ड होती हैं। जैसे कि आप बाइक चलाने के लिए उसका मैनुअल तो रीड कर सकते हैं, बट यू नीड अ मास्टर टू लर्न हाउ टू ड्राइव। ओके, तो वही चीज है। तो ये पहले मार्शल आर्ट का भी पार्ट रही है। अब ये ओरिजिनेट कैसे हुई? जिनको हम आदि योगी बोलते हैं, शिव, एक्चुअली में उन्होंने ही इसको बनाया है। जिस तरह से वो योग के जनक हैं, इसी तरह ये मर्म योग के भी जनक हैं। और असल में मर्म जो है वो चिकित्सा का पार्ट है, योग चिकित्सा नहीं है। जिसको हम बोलते हैं ना ट्रीटमेंट मोडालिटी, ट्रीट करने का तरीका। योग किसी को ट्रीट करने का मोडालिटी नहीं है, वो एक जीवन शैली है। बट मर्म जो है एक मोडालिटी है ट्रीट करने की, ये चिकित्सा है। इट इज ए नॉन इन्वेजिव सर्जरी। और ये स्टार्टिंग में शिव से फिर अगस्त्य मुनि तक आई, अगस्त्य मुनि से फिर परशुराम जी को मिली। फिर वहां से डिफरेंट जो युद्ध नीति में निपुण थे, जो योद्धा हुआ करते थे, जो स्पाई हुआ करते थे राजाओं के समय के, या अगर हम अंग्रेजों के आने से पहले की बात करें तो जो रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी उनके स्पाई हुआ करते थे, गुप्तचर। ओके, तो ये उनको सिखाई जाती थी, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस से किसी को भी बहुत इजीली मार भी सकते हैं विद ए सिंगल पॉइंट। कितनी बार ऐसा आपने देखा होगा कि कोई बाथरूम में नहा रहा है और नहाते हुए वो गिर गए, बट उनको कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ, बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन उनको पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया। वो एक्चुअल में मर्म कंप्रेशन हो जाता है उनका, मतलब कि एनर्जी ब्लॉक हो गई। ओके, अब ये हमारी कल्चर का भी पार्ट रहा है। अब कोई चीज अगर हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पहले से रही है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया कि उसको हमारे लाइफस्टाइल में ऐड कर दिया। मतलब जब तक हम, ट्रेडिशन किसको बोलते हैं? जिसको आप काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हो उसको ट्रेडिशन बोलते हैं, और उसको एविडेंस की जरूरत नहीं है। ओके, हेलो, जस्ट गिव मी थम्स अप। वेरी गुड। अब मैं आपसे अगर ये बोलूं कि आप सब लोग मर्म की प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आप सब लोग मर्म की प्रैक्टिस करते हैं, बट कब और किस वक्त करते हैं? अब आप ये देखिए, आप बिंदी लगाते हैं, ये असल में मर्म स्थल है। क्यों? क्योंकि हमारी यहां पर पीनियल ग्लैंड होती है। ओके,
अब वो ग्लैंड बेसिकली काम क्या करती है, अगर आपको ये पता हो कि थायराइड ग्लैंड होती है हमारी इधर, राइट, और किसी का अगर थायराइड का टेस्ट होता है तो उसके अंदर TSH लेवल को चेक किया जाता है, राइट, विच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब इस ग्लैंड को काम करने के लिए एक हार्मोन चाहिए जो उसको स्टिमुलेट करेगा, वो इस ग्लैंड से रिलीज होता है। तो वो ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए आप मैनुअल काम करेंगे पूरा दिन, ऐसे तो नहीं कर सकते। और क्योंकि हर एक मर्म स्थल का अपनी एक एनाटॉमी होती है, डेप्थ होता है, हाइट होती है, विड्थ होती है, तो आप उससे अगर डेली स्टिमुलेशन हाथ से करेंगे तो मे बी आप उसको डिसरप्ट कर दें। इसलिए उनको रेगुलर बेसिस पे छेड़ा नहीं जाता, इसलिए तो ये चिकित्सा का पार्ट होता है, इसलिए हर किसी को सिखाई नहीं जाती थी। बट क्या किया गया, एज ए प्रिवेंशन लाइफस्टाइल में ऐड कर दिया गया कि आप यहां पर तिलक लगाइए। लेकिन वो किसी लैक्मे कंपनी का या किसी भी अदर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। वो सिंदूर हो सकता है, हल्दी हो सकती है, कुमकुम हो सकता है, केसर हो सकता है, चंदन हो सकता है, जो आपको ठंडक दे, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम जो ब्रांड यूज करते हैं बिंदी के लिए, उसमें क्या प्रॉपर्टीज है बताइए? क्या वो एडिबल है, आप उसको खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, दैट इज गुड फॉर नो यूज। ओके। अब दूसरी बात, इससे आपका TSH लेवल स्टिमुलेट होता रहेगा, स्ट्रेस लेवल कम होता रहेगा, तो आपको थायराइड होगा ही नहीं। सेकंड, हम जो ईयर पियर्सिंग करते हैं, जिसे कर्ण भेदन संस्कार बोलते हैं, इट इज मेंट फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे कान के पास से क्रेनियो नर्व पास होती है जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, रिलैक्स करती है, इसीलिए हम ईयर पियर्सिंग करते हैं। और अगर आप, नॉर्मल टिप बताता हूं मैं, अगर हेडेक है या स्ट्रेस लेवल ज्यादा है या नींद नहीं आती है, तो सोने से पहले सिर्फ अपने कानों को आप खींचिए ऐसे, सिर्फ यहां से पकड़ के इनको पुल करना है। आप अभी कर सकते हो फॉर 5 सेकेंड्स के लिए, दोनों कानों को एक साथ आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है। 5 4 3 2 1, रिलैक्स, पुल, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। ओके, दैट मीन्स बचपन में जिसके स्कूल में ज्यादा कान खींचे गए होंगे वो बहुत अच्छे ब्रेन के साथ होगा। यही इंटेंशन होती है कान खींचने के पीछे, ये कोई पनिशमेंट नहीं होती है। इट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यू हैव डन अ मिस्टेक, सो यूज योर माइंड। ओके, ये पनिशमेंट नहीं है, आपके ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कान पकड़े जाते थे। इसी तरह हम नेवल ऑयलिंग भी करते हैं, बट नेवल ऑयलिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट एनस ऑयलिंग। ओके, क्योंकि जिसको हम गुदा द्वार बोलते हैं, आपने बचपन में सुना भी होगा, अगर आप में से जो बहुत से लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे को एनएस एरिया में हम ऑयलिंग भी करते हैं कि उसका हेल्थ अच्छा रहे। बेसिकली हमारी बॉडी में जो कुछ एजेस होते हैं, जैसे लिप्स, नोज, आईज, ईयर्स, फिंगर टिप्स, नेवल, एनस, ये एजेस से आपकी बॉडी से एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए ऑयलिंग करते हैं। क्योंकि मर्म स्थल को हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि ऊर्जा निकल ना जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी तिलक लगेगा अगर तो सर पर कपड़ा रखते हैं या हाथ लगाते हैं, और जो लोग ब्राह्मण या पंडिताई करते हैं वो चोटी भी रखते हैं। ओके, तो बालों को बांध करके रखा जाता है ताकि बॉडी के ऐसे एनर्जी रिलीज ना हो जाए। अंडरस्टूड? अब बात आती है कि मर्म, ये तो हुआ कि हमारे कल्चर में आ गए। अब बात आती है योग की, कि हम योग करते हैं। योग आप सब लोगों ने सुना है, योग करते आ रहे हैं हम लोग। असल में योग का बेनिफिट कब है? योग का बेनिफिट ही तब है जब उस पर्टिकुलर पोस्चर को करने से आपका मर्म स्टिमुलेट हो जाए। मतलब आप ये समझिए कि आप घर पे मोबाइल फोन या रेडियो सुन रहे हो, तो आप उसका ट्यूनिंग एडजस्ट करते हो, राइट, ताकि वो एक FM चैनल तक मैनिफेस्ट हो सके, फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके, सो दैट कि आप कोई सॉन्ग या न्यूज सुन सकें। तो योगिक आसन या जो पोस्चर्स हैं, वो अलाइनमेंट इस तरह का है कि आपकी बॉडी में एक अलाइनमेंट सेट हो जाएगा, तो एनर्जी का चैनलाइजेशन हो जाएगा उससे। ऐसा क्यों होगा? अब आप ये ध्यान से देखिए, एक आसन का नाम है मयूरासन, एक आसन का नाम है ताड़ासन, एक है चक्रासन, एक है धनुरासन, एक है गौमुखासन। इन सब के नाम प्रकृति से लिए गए हैं।
मतलब गाय से, मोर से, पेड़ पौधों से, राइट। लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया कि गाय तो कभी मयूरासन नहीं करेगी, और जो मोर है जिससे हमने मयूरासन लिया है वो कभी ताड़ासन नहीं करेगा, राइट। तो एक्चुअल में हम लोगों ने इनके नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि एक रेफरेंस लेने के लिए। और असल में ये है क्या, ये बॉडी की वो पोस्चर्स हैं जिनको करने से आपके बॉडी में वो पर्टिकुलर मर्म स्थल स्टिमुलेट हो जाते हैं। क्योंकि मर्म क्या है, जूस है, एब्स्ट्रैक्ट है, एसेंस है, किसका, आपकी बॉडी का। मतलब आपको किसी फल या सब्जी का डायरेक्ट जूस निकाल करके दे दिया जाए तो कुछ बचेगा क्या उसका, उसके आगे और कुछ नहीं बचता है। सेम अदरवाइज ह्यूमन बॉडी के लिए केवल 3 ही आसन हैं जो बने हैं, जो आसानी से किए जा सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? जस्ट गिव मी थम्स अप। ओके, वेरी गुड। वो 3 आसन कौन से हैं? पहला है गर्भासन, जिस पोजीशन में आप मां के गर्भ में होते हैं 9 महीना, 6 महीना बेसिकली। उस पोजीशन में आप हेल्दी रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, पल्स अच्छा रहता है। सेकंड आसन कौन सा होगा? सुखासन, जिसमें आप बैठ के भोजन करते हो, स्टडी करते हो, राइट। और थर्ड आसन है शवासन, जिसमें हम सोते हैं या रेस्ट करते हैं। अब आप ये देखिए, हम आसन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अभी आप में से सब लोगों को मयूरासन दिया जाए या चक्रासन दिया जाए या पश्चिमोत्तानासन दिया जाए, जिसमें घुटने पर सर को लगाते हैं, तो आप कितनी देर कर सकते हैं उसको? 5 मिनट? उसी पोजीशन को होल्ड करना है अगर तो 10 मिनट? हेलो, कुछ ही मिनट हो पाएगा, राइट। असल में आसन पता, लेकिन सुखासन में या शवासन में तो हम 2-2 3-3 घंटे बैठ सकते हैं। अब आप समझिए कि आसन कहेंगे किसको। आप में से बहुत लोगों को ड्राइविंग आज आती होगी, पहले नहीं आती होगी। आप में से बहुत से लोगों को चपाती बनाना अच्छे से आता होगा। चपाती का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं कि मुझसे स्टार्टिंग में चपाती नहीं बनती थी, तो अब अच्छे से बनने लग गई है। मैं रोटी की बात कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में जो चीज आपके लिए मुश्किल होती है, बाद में आसान हो जाए, उसको हम बोलते हैं आसन। द एफर्ट विच इज एफर्टलेस। ओके। ये जो सिद्ध योगी होते हैं, जो 12-12 साल तक नागा साधु होते हैं, ये एक ही पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। असल में वो उसको सिद्ध कर लेते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो हमारी बॉडी के लिए जो सिद्ध आसन है वो क्या रहते हैं? सुखासन या शवासन। बाकी तो मैनिपुलेशंस हैं, पोस्चर हैं। ओके। अब जैसे पश्चिमोत्तानासन आप सबको पता है कि हमें खुद को बेंड करना होता है, घुटने पर सर लगाना होता है, सबको पता है पश्चिमोत्तानासन। जस्ट गिव मी थम्स अप, एक बार थम्स अप दीजिए। वेरी गुड। पश्चिम का मतलब क्या होता है? पर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होता है। हाँ, मैं वही आ रहा हूं। हाँ। पश्चिमोत्तानासन में क्या होता है कि हम जमीन पर बैठ करके अपने सर को घुटने पर लगाते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग इसको बोलते हैं। इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम बोलते हैं वेस्ट को, डायरेक्शंस होती है ना। बट हमारी बॉडी के लिए पश्चिम क्या होगा? उसको बोलेंगे बैकयार्ड एरिया, मतलब आपकी बॉडी का पिछला हिस्सा। और हम घुटने पर लगा रहे हैं सर को। एक्चुअली ये आसन घुटने पर सर को लगाने के बारे में नहीं है, ये आपकी स्पाइन के बारे में है, जिसका नाम पश्चिमोत्तानासन है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्पाइन है, ये आपके लोअर लिम्स है, आप ऐसे लगाते हो। हमारा टारगेट यहां घुटने को सर पर लगाना नहीं है। हमारा टारगेट है कि जो मर्म स्थल हमारे स्पाइन में है, L5 S1 एरिया में है, जो वेस्ट लाइन के पास में है, उनका स्टिमुलेशन हो जाए। ओके। और वो स्टिमुलेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि घुटने पर सर लगे। घुटने पर सर लगाना इज एडवांसमेंट, इज योर अटेनमेंट। आप कुछ समय बाद वो लेवल गेन कर लेते हो प्रैक्टिस करते करते। ओके। हमारा मेन मकसद क्या है कि मर्म स्थल को स्टिमुलेट करना। तो वो कैसे स्टिमुलेट हो जाएगा? अगर आप सीधे बैठे हो, सिर्फ यहां से कमर को सीधा करके आप इतना भी बेंड हो गए और आपके लोअर बैक में हल्का सा स्ट्रेच आ गया, और आपको पता है कि उस मर्म स्थल पर आप काम कर रहे हो, तो काम हो गया। बैक पेन है, स्पाइन डिस्क का इश्यू है, कुछ भी है, इतने में ही काम हो जाएगा।
अब आपको नहीं लगता ये पोजीशन किसी का 98 वेट हो या 100 हो, 80 हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, आसानी से कर पाएगा? क्योंकि योग जो है वो बना स्पिरिचुअल गेन्स के लिए है। जो लोग हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन है, केवल वही योग कर सकते हैं। आज की डेट में योग करने वाला ही बीमार है एक्चुअली में। उसको हेल्थ इश्यू है, वो इसलिए योगा स्टार्ट कर रहा है, बट योगा इस चीज के लिए नहीं है। योगा की जर्नी स्टार्ट ही तब होती है जब आप हेल्दी हो जाते हैं। और मर्म कब है आपको? जब आप हेल्दी नहीं है, वहां से न्यूट्रलाइज करने के लिए, आपको एलिजिबल बनाने के लिए कि आप योगिक प्रैक्टिसेस को कर सकें। ओके, अंडरस्टूड? तो इसलिए ये हमारे कल्चर का भी पार्ट रहा है, मार्शल आर्ट का भी, योगा का भी। अब हर एक मर्म स्थल को स्टिमुलेट करने के कुछ तरीके हैं। आपने बहुत बार वो देखा होगा, एक पैकेजिंग के लिए ना एक पॉलिथीन यूज की जाती है जिसके अंदर एयर बबल्स होते हैं, राइट? और आपने कुछ ऐसे बलून्स भी देखे होंगे जो टॉयज की शेप में होते हैं। अगर उनको आप ब्लो करेंगे तो जैसा कार्टून का या एनिमल का डिजाइन होगा वैसे ही बॉडी पोस्चर डेवलप हो जाएगा। सेम हमारी बॉडी में जो मर्म स्थल हैं, जब हम ब्रीद करते हैं और होल्ड करते हैं ना, उससे भी वो स्टिमुलेट होते हैं। जब हम कुछ सही सोचते हैं उससे भी स्टिमुलेट होते हैं। सही सोचते हैं कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑन स्टेज कंपटीशन के लिए बोला जाए कि बेटा आपको स्पीच देनी है और आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है अगर, तो प्रेशर लग जाएगा। ऐसा होता है। एक्चुअली में हमारे कॉन्फिडेंस से हमारी किडनी रिलेट करती है। ओके, तो अगर किडनी की हालत अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी अच्छा रहेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई हॉरर मूवी देखते हो या कुछ नॉन वेज चीजें देख लेते हो कि डिस्कवरी चैनल पे कोई लॉयन किसी को खा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? सोचने से किसी चीज के बारे में गूजबम्स आ जाते हैं, पल्स रेट चेंज हो जाता है। कोई बुरी खबर आ जाए तो आपकी बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करती है। जैसे जिन लोगों के अंदर डर है, भय है, फियर है, असल में उनका स्टमक वीक रहेगा, क्योंकि स्टमक कंजेस्टेड हो जाता है। और जिन लोगों को इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, मतलब गुस्सा है बट एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इमोशन को बता नहीं पा रहे हैं, उनको ब्रीदिंग का इश्यू होगा, चोकअप हो जाएगा, और कुछ समय बाद वो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसको हम मेडिकल टर्म्स में एस्थमा बोल देते हैं। लेकिन देखो स्टार्ट कहां से हुई चीजें। ओके, तो असल में ये मर्म स्थल वही है जो आपके शरीर में जो ब्लॉकेज बनेंगी ना, सोचने से, खाने से, और बॉडी को सही कंडक्ट ना करने की वजह से। क्योंकि आप ये तो समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस तो बनेंगी, क्योंकि जहां एनर्जी का फ्लो नहीं होगा वहां बीमार होना हम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो और ऑन रोड किसी ने बीच में गाड़ी को खड़ा कर दिया तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, राइट? हम साइड से तो निकल सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन क्या होना चाहिए कि जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आप उसको एलिमिनेट कर दो। आप उसको एलिमिनेट करते हो, आपकी एनर्जी चैनलाइज रहती है, तो आप हेल्दी, फिट एंड फाइन रहते हो। और ये चीजें जो है केवल आपका 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सिर्फ इतना ही मांगती है करने के लिए, ज्यादा नहीं। सेल्फ हीलिंग में जब आप इनको सीखते हैं तो नॉर्मल हेड एक, सर्वाइकल, माइग्रेन, बैक एक, अब आप लोगों को अच्छा लगेगा थोड़ा सुन करके, फैट लॉस मतलब टमी भी कम हो जाएगा इससे, जस्ट इफ यू यूज ए वन मर्म पॉइंट, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। इरेगुलर अगर पीरियड्स हैं आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। पीरियड से एक हफ्ता पहले इसको करना स्टार्ट करेंगे तो क्रैम्प्स नहीं आएंगे, पेन नहीं आएंगे। कोई अगर कंसीव कर चुका है, प्रेगनेंसी का मंथ चल रहे हैं, तो वो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुद को मर्म देते हैं, तो वो जो एक स्टिफनेस या कमर में दर्द बाद में स्टार्ट होता है डिलीवरी के बाद में, क्योंकि नॉर्मली एक वुमेन के लिए डिलीवरी के बाद में जो कंडीशन हो जाती है, अगर उस समय ध्यान नहीं देते तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है एक्चुअल में, देखा जाए अगर। ओके, बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, सब चीजें हैं। तो उस दौरान हल्का हल्का करते रहेंगे तो डिलीवरी के बाद की चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, आराम से आप रिकवर कर पाते हो। अब बात आती है कि कुछ मर्म मैं आपको अगर ऑन द स्पॉट बताऊं, अभी आप मेरे साथ ही करेंगे। यहां एक मर्म है,
ओके, वैसे तो हमारी बॉडी में 108 मर्म है, हालांकि 107 होते हैं। जो 108 है ना, 108, वो कोई एक पॉइंट नहीं है, एक्चुअल में पूरी स्किन होती है वो। क्योंकि जो मर्म पॉइंट अगर एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और यहां से यहां तक एनर्जी को जाना है, तो वो किसी ट्रैक के थ्रू जाएगी ना, एनर्जी के थ्रू। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी में, वो तो स्किन के थ्रू होता है। तो इसलिए पूरी स्किन को एक पॉइंट कंसीडर कर लिया गया है। इसलिए हम लोग मसाज करते होते हैं। सिर्फ मसाज से आपकी बॉडी के 60 to 70% हेल्थ इश्यूज खत्म हो सकते हैं। 60 to 70% हेल्थ इश्यूज, ओके, खत्म हो सकते हैं। और दूसरा, अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन खुद नहाने से पहले मालिश करते होते हैं, अपनी मर्दन क्रिया करते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ के लिए कुछ और चीजें करने की जरूरत नहीं है। वेट भी नहीं बनेगा ज्यादा, मसल्स भी अच्छी रहेंगी आपकी, इसी में इनफ काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करने से आपके मर्म स्टिमुलेट होते हैं। ओके, चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं साथ में। जो प्रैक्टिस करना चाहेंगे वो थोड़ा सा वेबकैम को ऑन करें। एक बार थम्स अप दीजिए और एक छोटी सी स्माइल भी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लेक्चर चल रहा है और बोरिंग हो गया सब लोगों को, क्योंकि मैं जोक भी सुना सकता हूँ थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। ओके, वेरी गुड। सो एक मर्म आपका इधर है फॉर एग्जाम्पल। अब इसको करने के लिए आपको यहां से आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। बट इसके लिए आप करेंगे क्या? पहले तो आप एक काम करके दिखाइए। आप सब लोगों ने नेक रोटेशन किया होगा, योग में सब करते हैं बैठ के। एक बार करके दिखाइए, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपसे पूछूं, स्टॉप स्टॉप। अच्छी बात यह है कि काफी लोग इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बी जैसा कर रहे हैं। ओके, तो अब इसके अंदर क्या देखना है आपको? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको नेक की रोटेशन करनी है, लेकिन नेक मसल्स का यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी मसल का यूज कर रहे हो तो उसमें टेंशन डेवलप होती है, क्योंकि आप मसल के साथ इंगेज्ड हो। तो फिर ये एफर्टलेस कैसे होगा? हमें इसको एफर्टलेस बनाना है ना। अभी तो आप इसमें एफर्ट लगा रहे हो नेक को मूव करने के लिए, तो एफर्टलेस कैसे बनेगा? एफर्टलेस ऐसे बनेगा, आप स्पाइन को सीधा करें और ये सोचें कि आपका जो हेड है, ये सिर है, इसका वेट आपकी नेक मैनेज करती है। तो आप क्या करेंगे? पहले मुझे देखेंगे, कोई करेगा नहीं। जस्ट ड्रॉप योर नेक। नेक को ड्रॉप करना है आपको, और उसके बाद इसको सिर्फ शिफ्ट करना है टू द राइट, गिरा देना है आपको, फिर पीछे गिरा देना है, फिर लेफ्ट में गिरा देना है, और फिर सामने। लेकिन आपको ये स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, एक रिदम में करना है। ओके, और जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा होगा। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके हेड का वेट आपकी नेक मसल्स खुद इंगेज कर रही हैं, आप नहीं कर रहे हो। दैट्स हाउ इट बिकम्स एन एफर्टलेस एफर्ट। अभी आप इसको ट्राई करेंगे, टू क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट। सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, सर्कुलर, राउंड, कंप्लीट राउंड, कंप्लीट राउंड, सर्कल। सिर्फ अपने नेक को गिरा देना है, ड्रॉप योर नेक। डन? हाउ वाज इट? कुछ डिफरेंस लगा? डिफरेंस जिनको लगा है वो 2 थम्स अप देंगे प्लीज। 2 थम्स अप। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, ज्यादा डेप्थ में काम करने के लिए। एक्चुअल में हमारा यहाँ मर्म होता है। ये मर्म होता क्या है आपका? जहां पर हमारी C5 वर्टिब्रा होती है। स्पाइन में हमारी C1 to C7 वर्टिब्राज होती हैं, राइट, जिनको सर्वाइकल बोलते हैं। तो C5 वर्टिब्रा के ये बिल्कुल साइड में होता है, और ये इंटरसेक्शन जहां पर होगा मसल, लिगामेंट और आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, उसकी जो नोड्स होती हैं, वो भी यहीं पर इंटरसेक्ट होती है। मतलब इस पॉइंट पर अगर हम किसी को ऐसे चॉप कर दें या मार दें,
तो वो पूरा शोल्डर उनका डिसेबल हो जाएगा। ओके, मार्शल आर्ट में देखते हैं ना, जूडो कराटे में वो यहाँ पे हिट करते हैं ऐसे, एक्चुअल में ये मर्म स्थल होता है। अब आप क्या करेंगे, किसी को हर्ट तो नहीं करना है आपको, जस्ट विद योर 2 फिंगर्स। पोजीशन कैसे लेनी है आपको, यहां से ऐसे हाथ बंद करना है, अंगूठे को यहां लगाना है नेक के ऊपर, और ये जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं आपकी, फर्स्ट 2 फिंगर्स जहां पर आ जाएंगी, उनको आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे। हल्का सा पेन होगा आपको इधर, यहां पर पेन होगा, ट्राई कीजिए, दबाना है ऐसे, प्रेशर देना है, दबा के रखो। पेन हुआ, उसको हल्का सा ऐसे स्टिमुलेट करना है, लेकिन नेक के पास होना चाहिए, नेक से दूर नहीं जाना है, नेक के पास। ओके, इसका नाम है अमसा, इसको बोलते हैं अमसा मर्म। इट इज ऑन बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट, आप किधर भी ट्राई कर सकते हो, सिर्फ 2 फिंगर से ऐसे। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा सिवियर सर्वाइकल और माइग्रेन है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो मस्कुलर लेवल का इश्यू रहता है, बट बाद में जैसे ही नर्व कंप्रेशन होती है तो पूरा हाथों तक नमनेस आ जाएगा या आपके स्पाइन तक चला जाएगा, राइट। तो उस केस में आप डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऑयल का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि ऑयल से क्या होगा, जब आप थोड़ा रबिंग करोगे ऐसे, तो हमारे जो स्किन में पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स ओपन अप हो जाते हैं। ओके, और वो जब ओपन अप हो जाएंगे तो वो सक करते हैं ऑयल की प्रॉपर्टीज को। ओके, तो लुब्रिकेट होगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो अच्छे से एलिमिनेट होंगे आपकी ब्लॉकेजेस। अब नेक की मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, जस्ट सिट स्ट्रेट, लुक टू द लेफ्ट एंड टू द राइट, बहुत धीरे से आना आपको। डन, ओके। अब देखना, आपका बहुत ही मैजिकल लगेगा ये चीज, जो लोग अच्छे से कर पाएंगे। सेम अपना 2 फिंगर उसी मर्म के ऊपर प्रेस करनी है, दबा के रखना है, और सेम मूवमेंट को करके देखो, आपको लगेगा कि आप कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो, बहुत ईज के साथ नेक मूव करेगी आपकी, राइट। एक्सपीरियंस हुआ किसी को ऐसा कि कुछ एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा और बहुत आराम से हो गया? और अगर आप लोग ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं तो क्लैप फॉर योर सेल्फ, वेरी गुड। अब ये 2 चीजें तो थी, नॉर्मली इसके अंदर हेडेक रहता है, नींद नहीं आती है, स्लीप डिसऑर्डर है, तो ये करने का तरीका कब हो जाता है कि जब आप नहाने जाएं, नहाने से पहले ये ऐसे स्टिमुलेशन दे सकते हैं, ऐसे हिट भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कुछ मर्म स्थल ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बुरी तरीके से हर्ट भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा पीछे की तरफ एक मर्म होता है इधर, वो होता कहां पर है, जहां पर आपकी स्पाइन का जो C1 होता है, सबसे पहला वर्टिब्रा C1, और जो आपके ब्रेन में फ्यूज होता है। ओके, वो एक क्या है, स्ट्रक्चर है, जॉइंट बोलते हैं उसको। तो वो मर्म अगर आप स्टिमुलेट करेंगे One तो second, क्या होगा, Deepak. Can you be a bit loud? हेलो। हाँ, अब ठीक Yeah, है, एक्चुअली यू आर it's मूविंग। perfect. ओके, अच्छा, मेरी स्पीड ओके है, Yes. स्पीड इज ओके, स्पीड इज But- ओके, जस्ट द वॉल्यूम। ओके ओके। सो बेसिकली आपकी जो नेक के पीछे, सर के ऊपर, सॉरी सर के नीचे हमारे, जहां पर एक छोटा सा आपको क्रस्ट मिलेगा, सी, ये जहां आपकी C1 होती है। ओके, एक्चुअल में हमारी स्पाइन जो है ब्रेन के साथ वहीं पर डिफ्यूज होती है। अब यहां पर क्या होता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो आपका मेलाटोनिन रिलीज करती है।
हम सोते हैं तो ये मर्म जो है स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। ओके, अब एट ए सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि नींद अच्छी आए, तो आप अपने दोनों हाथों से इस मर्म को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और इसको करने का तरीका क्या है? आप या तो दोनों हाथों के फिंगर्स लेंगे ऐसे, और इसको यहां से ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हो, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे स्टिमुलेट करके देखो अच्छे से। थोड़ा मीडियम प्रेशर लेना है, दोनों हाथों से करके देखो। हाउ वाज इट? रिलीफ लगता है? हल्का लगता है? हेलो, इट वाज गुड? रिलैक्स, यस। थैंक यू पारस। हाँ, आप लोग टाइप भी कर सकते हो चैट बॉक्स में किसको कैसा लग रहा है, या क्योंकि बहुत बार अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो एग्रीवेट भी हो जाता है पेन। आई रिपीट, अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो पेन एग्रीवेट भी हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसके एसेंस को छेड़ रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, राइट? हाँ जी, तो धीरे धीरे 1 2 3 दिन के बाद में ये अच्छा होने लगता है। अब आपको मैं एग्जांपल और देता हूं। इसी जगह पर आप अपने आप को सिर्फ ऐसे थोड़ा सा हिट करो। अब इसको हिट करने से क्या होता है? थोड़ा सा हमारी कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है। होता है, दो चीजें होती हैं कि आपका जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिस्टम का मतलब आपका ब्रेन और आपका स्पाइन जब एज ए सिस्टम काम करते हैं उसको CNS सिस्टम बोलते हैं। तो एक्चुअली जब आप हिट करते हो तो आप उनका सिस्टम को ब्रेक कर रहे हो। और दूसरा, आप इस मर्म स्थल को हर्ट कर रहे हो। तो कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी को यहां पर हिट कर दोगे ऐसे, तो जो सेरिब्लम फ्लूइड होता है हमारी स्पाइन में, सर के ऊपर पूरा अंदर सेरिब्लम फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली सस्पेंशन अगर हो जाए तो वर्टिगो भी हो जाती है, या हम कॉन्शियसनेस खो देते हैं, बैलेंस नहीं बनता है बॉडी में। आपने कितनी बार, एक मूवी आई थी नाना पाटेकर की, वो बोलते हैं इधर नहीं मारना, छोटा दिमाग होता है, सुना है? यस। आप बहुत जल्दी किसी को यहां से हिट करके हर्ट कर सकते हो। तो इसलिए इसका स्टिमुलेशन हल्का रखेंगे सोने से पहले, तो बहुत अच्छी नींद और आपकी जो ब्रेन का स्ट्रेस लेवल है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां से एंजाइटी, एल्जाइमर, ऑटिज्म, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, क्लॉटेज, इन सब पर भी काम किया जाता है, लेकिन वो एक्सपर्टीज की बात है। बट हम लोग तो नॉर्मली सेल्फ हीलिंग के लिए काम करेंगे, बट आपका काम उन रूट्स पर ही होगा, काम उसी जगह पर होगा। तो असल में हम जो यौगिक आसन करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, उनसे असल में होता क्या है, उन पोस्चर को, उन अलाइनमेंट को करने से ये मर्म स्थल ही स्टिमुलेट होते हैं, और हम लोग डायरेक्ट इस मर्म को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो होगा क्या? 1/4, मतलब जो काम 1 घंटे में होना है योग करने से, वो बॉडी में आपका 15 मिनट में रिजल्ट देगा। वो बात अलग है कि आपको शीर्षासन करना है, वैसा स्ट्रेच करना है, वो अलग चीजें हैं। बट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, कि एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छा रहे, नींद अच्छी आए, बॉडी में फैट डेवलप ना हो, डाइजेशन अच्छा रहे, हेल्थ मेंटेन रहे। क्योंकि हेल्थ के लिए एक्चुअल में आपको 1 घंटा देने की जरूरत नहीं है, हेल्थ तो एक्चुअली में आपको 24 आवर्स देने की जरूरत है, क्योंकि 24 घंटे ही ध्यान रखेंगे तो ही काम चलेगा। इट इज ए लाइफ स्टाइल। तो इसलिए ये जो चीजें हैं छोटी मोटी करने वाली, ये आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जब हम इनका कोर्स कराते हैं लोगों को। तो कंडीशंस में बता देता हूं क्या होती है। यस, ये टैपिंग इसके अंदर होती है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जो ग्रॉस एनाटॉमी है, वो बोलती है कि सिर्फ लंग से हम ब्रीद करते हैं। बट एक्चुअल में आपकी स्किन भी ब्रीद करती है, आपका हर एक ऑर्गन भी ब्रीद करता है। ओके, और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और ये बहुत ही क्वांटम फिजिक्स वाली बात है। क्वांटम फिजिक्स एज इन कि अगर मैं बात करूं आइस क्यूब, वो H2O है बट इन सॉलिड फॉर्म। वाटर की अगर बात करें वो लिक्विड फॉर्म में H2O है।
बट एक बार उसको आप इवेपोरेट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो वो क्या होगा, एटमोसफेयर में सैचुरेट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, तो वो क्वांटम फॉर्म में चला गया ना। किसी पेड़ के नीचे ही हमें ठंडी हवा क्यों लगती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है। इसी तरह हमारी बॉडी को एक्चुअल में वाटर नहीं, हम बोलते हैं ना कि पानी चाहिए बॉडी को पानी नहीं चाहिए, बॉडी को जल तत्व चाहिए। डिफरेंस क्या होता है जल में और जल तत्व में? कभी विंटर सीजन में आप लोग देखेंगे कि हम लोग हाथ सेकते हैं ऐसे, उसका ताप लेने के लिए, वार्मथ लेने के लिए। हम आग में हाथ तो नहीं डालते, या कोई डालता है तो हाथ खड़ा कर सकता है? नहीं, आर यू श्योर? ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी को जल नहीं, जल तत्व चाहिए, उसका हमें कंटेंट चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में आयरन होता है, तो क्या हम आयरन को खाते हैं? कास्ट आयरन में बर्तन में हम खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, राइट? सेम हमारी बॉडी को जल तत्व चाहिए, वो H2O पानी से नहीं मिलेगा, वो सिर्फ फलों सब्जियों के रस से मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रूट से मिलता है, फ्लावर से मिलता है। मतलब आप फ्लावर्स को खा सकते हो, जो फूल होते हैं ना, जो भी एनिवर्सरी पे आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हैं फ्लावर्स, अगर वो ओरिजिनल है तो आप उनको खा सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा वो हेल्थ के लिए। और इनसे ज्यादा अंदर बॉडी में हमारे काम करने के लिए है फ्रेग्रेंस, खुशबू जिसको बोलते हैं। जैसे कि हम स्टीम लेते हैं बहुत बार, या हमारे कल्चर में होम करते हैं, अग्निहोत्र या हवन करते हैं, वो इतने डीप रूट एरिया में जाके काम करता है कि कोई भोजन भी नहीं कर पाएगा। वो कैसे? अब आप ये बताइए, बिना खाने के कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 1 महीना? फास्टिंग होती है, रमजान होता है, नवरात्रि होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। 1 महीना हम बिना खाए रह सकते हैं। और भोजन है क्या? सॉलिड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके। सेकंड क्या है? पानी के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकते हो? 5 to 6 days। आवाज आ रही है सब तक? 5 to 6 days विदाउट वाटर वी कैन लिव, वी कैन सर्वाइव। अब बात आती है गैसियस स्टेट की। हवा ना मिले तो कितने दिन, कितने आवर्स या कितने मिनट हम जिंदा रहेंगे? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो इनकी रैंकिंग ऑर्डर क्या होनी चाहिए? टॉप लेवल पे क्या आएगा? एयर, सेकंड वाटर, एंड थर्ड सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड। बट हम लोगों ने क्या किया हुआ है? प्रॉब्लम हमारी डाइट में नहीं है, हमारी अप्रोच में है। हवा पानी आपकी बॉडी पे जल्दी इफेक्ट देता है, इसलिए जो अडल्ट लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनको लिक्विड डाइट क्यों दिया जाता है? वो बीमार है इसलिए नहीं, वो इसलिए दिया जाता है ताकि वो इजी डाइजेस्ट कर लें उसको। वरना ऐसे भी लोग हैं जो बेड रेस्ट पे नहीं है, बट उनको रियलाइजेशन नहीं है कि वो लोग बीमार हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उन लोगों को सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फूड शुड बी इकोनॉमिकल फॉर योर डाइजेशन। इकोनॉमिकल मतलब खाना वो खाना चाहिए जो आपका डाइजेशन आराम से हो सके, जिसको बॉडी को एनर्जी कम खर्च करनी पड़े उसको डाइजेस्ट करने में, क्योंकि खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, उसको जब आप कंज्यूम करते हो उसके बाद में बॉडी कन्वर्ट करती है, वो है चीज। ओके, इसलिए हमारे यहाँ कहावत भी होती है कि हवा पानी बदलो। आप बॉम्बे में रहते हो, हैदराबाद, मोस्टली आप लोग, अगर हैदराबाद से बात करूं तो आप हैदराबाद में बैठ करके कश्मीर का सेब खा सकते हो, बट एक्चुअल में खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां का हवा पानी नहीं है आपके पास। इसलिए हमेशा लोकल एंड सीजनल की बात की जाती है। ओके, तो ये मर्म पॉइंट एक्चुअल में आपकी बॉडी में से ब्लॉकेज को निकालते हैं, और ब्लॉकेज को निकालेंगे तो क्या होगा? एनर्जी चैनलाइज होती रहेगी, क्योंकि ब्लॉकेज फिजिकल और नॉन फिजिकल दो फॉर्म में बनती हैं। ओके, नॉन फिजिकल फॉर्म मतलब आपके सोचने से, आपके डाइट से, क्योंकि आदि इश्यूज तो साइकोसोमैटिक हैं, आप सोच करके ही डेवलप कर लेते हो। क्योंकि दो लोग हैं, अगर उन दोनों को सेम इशू है, जल्दी किसका ठीक होगा? जल्दी उसका ठीक होगा जिसकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी अच्छी होगी, जिसका माइंडसेट अच्छा होगा, जल्दी बेनिफिट उसको मिलेगा।
क्योंकि वो जानता है हाउ टू रिसीव दिस। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो दिन में 2 चाय पियेंगे, 2 कप, उनको एसिडिटी हो जाएगी। और ऐसे भी 2 लोग हैं जो इवनिंग में 2 पैग लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, एंड दे आर फिट एंड फाइन, उनके लिए वो बहुत अच्छे से काम करता है। राइट? मैं पूरी बॉटल की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट अ डोज। तो प्रॉब्लम चाय या ड्रिंक में नहीं है, इट इज इन योर डाइजेशन। ओके? क्योंकि डिजीज जो है आपके माइंडसेट, आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल की अगर मैं बात करूं, अगर आपके अंदर जेलसी है, रिग्रेट है, गिल्ट है, शेम है, तो एक्चुअल में आपके ऑर्गन्स वीक होने वाले हैं। अभी मैं देखो क्या बात बोलूंगा, आपको थोड़ा अलग लगेगा। अगर मैं बोलूं कि झूठ बोलने से या गलत बोलने से भी थायराइड हो सकता है, तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे? अब आप नॉर्मली ऐसे खड़े हो दोनों हाथ सीधे करके, आपका एक हाथ लेफ्ट से कोई पुल करता है, एक हाथ राइट से पुल करता है, तो क्या होगा? ऑपोजिट फोर्सेस आएंगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी उससे, क्योंकि फ्रिक्शन डेवलप होता है। अब हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं या थायराइड ग्लैंड जो होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। बट एक्चुअल में आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी पर्सनैलिटी अंदर से जानती है कि रियलिटी क्या है। राइट? सो होगा क्या कि अंदर बॉडी कुछ और बोल रही है बोलने के लिए, बाहर से आप कुछ और बोल रहे हो, तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। मतलब सीधा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, आप खाना तब खाइए जब भूख ना हो, और जब भूख लगे तब खाना मत खाओ। क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। जैसे टॉयलेट जाना है, तो टॉयलेट में जब प्रेशर लगे तब टॉयलेट करने मत जाना, जब प्रेशर ना लगे तब जाओ करने। ऐसा हो सकता है क्या? सेम चीज आपकी बॉडी के साथ में है, ये बोलने वाली चीज जो है। ओके? तो इसलिए एनर्जी का रेगुलेशन फ्लो अच्छे से बने रहना चाहिए, बॉडी में ब्लॉकेज नहीं बननी चाहिए। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ब्लॉकेज बनती क्यों है, और हमेशा ही बनेंगी क्या ब्लॉकेज? दिस इज द रूल ऑफ द नेचर। अगर आपके घर के बाहर एक खाली जमीन है, आप उस पर कोई पौधा लगाएं या ना लगाएं, ये नियम है कुदरत का कि वहां पर घास फूस तो लगाएगी लगाएगी वो। राइट? तो बॉडी में आप कुछ वर्कआउट करें या ना करें, दोनों कंडीशंस में ब्लॉकेज बनेंगी, बस हमें उनको एलिमिनेट करना है। ये सीधा सा एग्जांपल है कि आप जिस घर में रहते हैं, अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन नहीं कराएंगे तो चलेगा, बट डेली डस्टिंग होनी चाहिए। ओके? सो यही एक सीक्रेट है हेल्थ का, उसके बाद के लेवल दूसरे होते हैं। तो इसीलिए ये मर्म जो है, ये आपके एसेंस पर काम कर रहा है। दैट मीन्स आपके फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल, इमोशनल, हर तरह की ब्लॉकेज को वो एलिमिनेट करेगा। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन है या जो कॉमन चीजें रहेंगी, हम उनको ले लें। दीपक, बोला जाता है कि 106 मर्म स्थल है। तो जैसे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रेगुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपने थायराइड का बताया या सर्वाइकल का बताया, या फिर नी नी पेन है या बैक पेन है, तो ये हम लोग कैसे वो मर्म स्थल को स्टिमुलेट कर सकते हैं? ये आपने 2-3 लाइन में क्वेश्चन किया है, लेकिन इनका आंसर बहुत लंबा है। तो एक स्पेसिफिक बात बोलिए नॉर्मली, जैसे कि अगर मैं इस मर्म की बात करूं, यहाँ की और यहाँ की, ये दोनों बेसिकली माइग्रेन सर्वाइकल के लिए ऑलरेडी डन है। नींद नहीं आती है अगर, इनफैक्ट अगर आईज में पेन होता है ज्यादा स्टडी करने की वजह से, आज की डेट में तो हम लोग बहुत ज्यादा बैठे भी रहते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया स्क्रीन है। टाइम, हाँ। स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है, तो ये बहुत अच्छे है करने के लिए। ओके? और हाँ, कुछ और बताइए इसमें, क्योंकि नीज के लिए जैसे अलग ही चला जाएगा। एक क्वेश्चन है, जैसे कि थायराइड पॉइंट क्या है, मर्म स्थल कैसे थायराइड? मर्म देखो, थायराइड के लिए ना, पहली चीज तो ये कि हर एक बॉडी को जानने के बाद बताने वाले ये डिसाइड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये चीजें करनी है। जैसे कि आप बोलेंगे कि दाल बनानी है मुझे, लेकिन दाल बनाने के लिए आपको दाल, पानी, तड़का, घी, तेल, 10 चीजें चाहिए उसके लिए। ओके? काफी लंबी लिस्ट हो जाती है चीजों को बनाने की। तो कभी भी एक पॉइंट नहीं होता है एक चीज को करने के लिए।
ओके, ये गलत हो जाएगा मैं ऐसे अगर बोल दूं कि इस पॉइंट को करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको किसी पेड़ से फल चाहिए तो हमें उसके फल को न्यूट्रिशन नहीं देना है, जाकर के उसकी जड़ों को न्यूट्रिशन देना है, ताकि उसको एक प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन सब जगह जाए। ओके, बट ऑर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ तरीके हैं। अगर हम उस ग्लैंड की बात करें, थायराइड की, प्रिवेंशन में क्या आता है कि थायराइड ग्लैंड के लिए पहली चीज तो ये आती है कि आपका ये जो पॉइंट रहता है, ओके, और दूसरा ये जो रहता है, तो यहां का बताया, ये नॉर्मली हम करते हैं तो इससे थायराइड अच्छा रहता है। ओके, साइनस के लिए क्वेश्चन आया है। नॉर्मली साइनस के लिए एक मर्म होता है, वो यहां पर होता है, और इसका नाम है फणा मर्म। फणा क्यों, फण किसको बोलते हैं, नाक के फण को, तो इसका नाम फणा मर्म है। तो बेसिकली ये, अब आप ये देखिए, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम ऐसे अंगूठा रखते हैं ना, हम नोस्ट्रिल को ऐसे भी तो बंद कर सकते थे, क्योंकि एंट्रेंस तो ऐसे है, हम यहीं से क्यों बंद करते हैं? रीजन ये होता है कि यहां पर हमारे मर्म होते हैं। ओके, तो ये स्टिमुलेशन करने से आपका सिर्फ साइनस ही नहीं, एक्चुअल में जो आपका पूरा पैसेज है वहां का एनर्जी का रेगुलेशन बना रहता है। बट एट ए सेम टाइम साइनस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉर 5 days आप सिर्फ 24 घंटे जो भी पानी पिए वो तुलसी का पानी पियो, आपको उसमें रिलीफ आ जाएगा। और द नेक्स्ट प्रॉब्लम किसी ने बताया कि डाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कैसे हम लोग स्टिमुलेट। ओके, मैं ऐसी चीज बताता हूँ, देखो जो आपको ना एक्चुअल में हमारी जो बॉडी है, अब हम नॉर्मली वर्कआउट करते हैं, आसन करते हैं, योगा करते हैं, तो मैं आपको एक डिजाइन दे देता हूँ, फॉर्मेट आप सभी के लिए है, इसमें सब चीजें आ जाएंगी। ओके, नॉर्मली बेड पर लेट करके या फ्लोर पर, ओके, आप अपने नेवल के नीचे ऐसे हाथ रखेंगे ओवरलैप करके, नेवल पर लगाया, और उल्टे लेट जाएंगे और अपने बटक्स को किक करना है ऐसे। ओके, और दूसरा नेवल ऑयलिंग लेट करके थोड़ा सर्कुलर मोशन में करेंगे, तो इससे आपका इंप्रूवमेंट आ जाता है। और दूसरी चीज, अपना वर्कआउट कभी भी डिजाइन करें तो 3 चीजें ध्यान रखें उसके अंदर। पहला आना चाहिए आपका स्पाइन, दूसरा आना चाहिए आपका डाइजेशन, तीसरा आना चाहिए आपका ब्रेन। हम नॉर्मली स्ट्रेंथ, वेट लॉस या फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर वर्कआउट डिजाइन करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, कितने ऐसे लोग हैं जो योगाचार्य हैं, फिटनेस कोच हैं, जिनके मैं सेशंस लेता हूं, वो बहुत ही अच्छी बॉडी के लेवल पर हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, जो हम लोगों के गोल्स हो सकते थे, बट दे आर हैविंग इश्यूज। तो आइडियली टू मेंटेन दी हेल्थ क्या डिजाइन होना चाहिए, स्पाइन, डाइजेशन एंड योर ब्रेन, सिर्फ ये 3 चीजों को रख के वर्कआउट डिजाइन करो। तो कैसा प्रोसेस होना चाहिए, लाइक अभी किसी के यस, हाँ प्लीज बताइए क्वेश्चन। नहीं, जैसे चैट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसे अभी किसी के किडनी इश्यूज है, जैसे आपने बताया कि किडनी इशू हो तो उससे क्या रिलेटेड है, तो किडनी के लिए क्या होना चाहिए, लाइक कैसे हम लोग वो प्रोसेस करें। आप पहले तो देखो, सॉल्यूशन ना उन लोगों को खुद आ जाएगा। मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ। किडनी स्टोन फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम डायबिटीज की अगर बात करें, पहली चीज तो ये कि डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, दैट इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओके, बल्कि डायबिटीज वाला हम लोगों से ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, तो वो अच्छी लाइफ लंबी जीते हैं। अब बात आती है कि डायबिटीज में इंसुलिन की बात आ जाती है। अब आप ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको हम पेनक्रिया बोलते हैं। ओके, आपका पेनक्रियाज ही इंसुलिन को रिलीज करता है। अगर वो अच्छी हालत में नहीं है तो हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। ओके, तो आप अपनी जो हठ योग की क्रियाएं होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में की जाती हैं, उनको जब हम करते हैं एक सुपरविजन में, तो ऑर्गन जब अच्छे से होगा, अपना काम करेगा, तो सभी ऑर्गन्स के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है वो बनाएगा फिर।
क्योंकि आपको ये सब इश्यूज बचपन से नहीं थे। जो बचपन से बाय बर्थ इश्यूज होते हैं वो हमारी बॉडी का नेचर बन जाते हैं, जो फैमिली हिस्ट्री से आते हैं। हम उनको फिर क्योर नहीं करते, सिर्फ उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना आए। बट अगर आपके जन्म के बाद एक एज के बाद आफ्टर 30 हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट होते हैं, तो सीधा सा है कि आपको उस चीज पर काम करने की जरूरत है। ओके। So what अब एक और चीज है कि what about psoriasis? जैसे skin is also skin is one of the मर्म स्थल। तो जब psoriasis हो जाता है तो हम लोग कैसे उसको प्रिवेंट करें? देखिए, इसमें एक चीज आती है कि जो सोराइसिस है या किस्मा है, स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हमारी स्किन, हमारे नेल्स और हमारे हेयर, स्किन, नेल्स और हेयर, ये जो तीनों चीजें आपकी बॉडी की इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, मतलब एक्सटर्नल लेयर ऑफ द बॉडी। ये इनकी जो कंडीशन है, ये वो दर्शाती है कि आपकी इंटरनल हेल्थ कैसी है। जैसे फीवर है, फीवर अब कोई बीमारी नहीं है, बॉडी डिटॉक्स कर रही है बैक्टीरिया को, बॉडी खुद की सफाई कर रही है, उसको फीवर बोलते हैं हम लोग। ओके। तो जो सोराइसिस है, एक्चुअल में होता क्या है, हर एक सेकंड में आपके नए सेल्स बनते हैं, पुराने खत्म होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। क्योंकि अगर आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप या गाड़ी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या ब्रेकेज हो जाए, तो वो खुद को रिपेयर नहीं कर सकती, राइट। बट ह्यूमन बॉडी खुद को रिपेयर कर सकती है, एक्सेप्ट योर टीथ। हमारे टीथ खुद को रिपेयर नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ रिपेयर हो सकता है, नहीं तो क्योंकि इनमें जो, psoriasis का क्या psoriasis को कैसे हील करें? मैं वही बता रहा हूँ, डाइजेशन पर काम करके। अच्छा। क्योंकि आपका जो सोराइसिस है वो स्किन का इश्यू जरूर है, बट एक्चुअल में वो स्टार्ट अंदर से हुआ है, आप उसको बाहर से ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि हीलिंग हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होती है। ओके। बाहर से हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो एक और क्वेश्चन था कि नेवल ऑयलिंग के लिए हमें कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? जनरली तो सेसमी ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है, बट अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग चीजें आती हैं। जैसे कि कभी कभी घी के साथ सॉल्ट का भी यूज किया जाता है। ओबेसिटी के लिए फिर हम इसमें हींग या जिंजर का भी यूज करते हैं। तो जिसकी जैसी कंडीशन है उसको वैसा रेमेडियल चीजें तो आ जाती हैं। इन जनरल जैसे अगर जैसे आप जनरल में तो सेसमी ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। वेरिकोस बोन को वेन्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? पहली चीज तो ये कि वेरिकोज बहुत ही जो है, इसको हमें हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वेरिकोज की वजह से स्ट्रोक भी आ सकता है। ओके। तो वेरिकोज के लिए सबसे अच्छा रहता है, लास्ट वीक ही मैंने पोस्ट किया था, आप एक तो इप्सम सॉल्ट ले सकते हैं किसी केमिस्ट शॉप से या मेडिकल स्टोर से, इप्सम सॉल्ट, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। और एक बकेट में गर्म पानी लेके उसमें बैठना है, पाँव को डालना है और अपने एंकल मोबिलिटी पर काम करें। जितना ज्यादा एंकल को मोबिलाइज करेंगे उतना अच्छा। ओके। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, जो वेरिकोज का एक्यूमुलेशन है, जो क्लॉटेज है, वो थोड़ा डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्लॉटेज की वजह से अगर वापस ब्लड पंप नहीं हुआ हार्ट तक, तो वो ऑन द स्पॉट आपको स्ट्रोक दे सकता है। तो इट इज वेरी रिस्की। सो इसीलिए वेरिकोज पर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। और एक्चुअली में जो इश्यूज आप बता रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि एक या दो लाइन में इन पर जवाब दिए जाए, इससे लोग मिसगाइड हो जाएंगे। जैसे क्विक हील, जैसे आपने बताया कि कुछ इंस्टेंट हील हो, मतलब इंस्टेंट एक हील बार वाली कुछ चीजें, आराम मिल जाए। हाँ हाँ, आराम वाली चीजें यही है कि जो मस्कुलर पेन वाली चीजें हैं वो इंस्टेंट हील करेंगी। ओके। जैसे कि अगर मैं, चलो एक चीज बताता हूँ, नेवल ऑयलिंग, एनएस ऑयलिंग, और नेवल से नीचे हमारा एक 4 फिंगर्स डाउन, जैसे नेवल होता है ना, उससे 4 फिंगर्स डाउन आप जाएंगे तो उसको बस्ती मर्म बोलते हैं। ओके। वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए रहता है। आप विद 2 फिंगर्स सिर्फ ऐसे स्टिमुलेट करें उसको, एक्सेल करने के बाद। अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द नेवल, 4 फिंगर्स डाउन, इधर नीचे यहां पर,
आप एक्सेल करके नीचे लेट करके स्टिमुलेट करेंगे तो आपका ऑर्गन इंटरनल अच्छा रहेगा। मतलब कि नॉर्मली वुमेन को ये करना चाहिए जब उनकी डेट एक्सपेक्टेड रहती है कि आफ्टर 1 वीक पीरियड्स आने वाले हैं, तो उससे 5 to 6 डेज पहले इसको करें, दिन में 2 बार, 3 या 4 दिन रेगुलर करें। ओके। तो जैसे एक और चीज है कि अगर हर्निया हो अंडर नेवल, व्हाट इज द प्रिकॉशन विदाउट ऑपरेशन? अगर हर्निया है तो अब डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज का है, कैसी करंट स्टेटस कैसी है, क्योंकि हर एक इशू का एक स्टेज लेवल होता है। अगर वो सर्जिकल केस में है तो उनको नेट रिकमेंड किया जाता है, बट अगर एक ऑपरेट हो चुका है तो फिर आप प्रिवेंशन ही फॉलो करेंगे। बट इनिशियल लेवल का है तो डेफिनेटली फिर वैसा काम किया जा सकता है। Okay. Can you give us some remedies for the sleep disorder? स्लीप डिसऑर्डर, दिस इज ऑलरेडी गिवन। उसने पहले बताई एयर यार। पुलिंग एंड दिस। एंड आजकल अभी सब बात इम्यूनिटी की हो रही है, तो क्या कोई पॉइंट है जिससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है? या देखिए फिर वो इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी इज द रिजल्टेंट ऑफ योर लाइफस्टाइल। ओके। इम्यूनिटी बेसिकली है क्या, कि अगर आपको डेली 1 से 2 मिनट ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको पसीना आए, क्योंकि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ ड्रेनेज जिसको बोलते हैं, वहां से एलिमिनेट होना चाहिए क्या, आपका सॉल्ट और आपके टॉक्सिन्स। हमारी बॉडी से जब भी स्वेटिंग होती है तो सिर्फ पसीना आता है, राइट? कभी चॉकलेट फ्लेवर या मैंगो फ्लेवर जो भी हम खाना खाते हैं वो फ्लेवर नहीं आएगा। रीजन क्या है, कि आपकी बॉडी अपने अंदर सॉल्ट को नहीं रखना चाहती है, इसलिए वो आपके पसीने से बाहर निकालती है सॉल्ट को। ओके। तो सबसे पहले अपना लिम्फेटिक सिस्टम को ड्रेन आउट करना होगा। तो इसलिए दिन में 1 से 2 बार 1 या 2 मिनट के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे आपको पसीना आए। सेकंड, आपका जो बॉडी में कफ है, म्यूकस है, आपको वो नहीं बनने देना है, क्योंकि बॉडी में म्यूकस कहीं भी एक्यूमुलेट होगा तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अब ये ब्लॉकेज इनिशियली माइग्रेन भी हो सकती है, बाद में आके फाइब्रॉइड सिस्ट भी बन जाती है और थायराइड का भी कारण बन जाती है। ओके। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो कोरोना के टाइम पे भी इसका ट्रांसमिशन एयर के थ्रू हो रहा है, गैसेस स्टेट में हो रहा है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये वायरस एक्टिवेट किस बॉडी में होगा, जिस बॉडी में इसको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ये गो थ्रू होगा हर एक बॉडी से, सबकी बॉडी में से निकलेगा ये कोरोना, आप मैं कोई भी है, एनी हाउ एनी वे। बट हमारी बॉडीज जिनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल अच्छा रहा है, वो तब तक एंटीबॉडीज डेवलप कर लेंगी उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। बट जिसकी बॉडी में म्यूकस है, कफ बनता है, उनको इश्यू होगा इससे। ओके। तो इससे निकलने का क्या है, मतलब ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको कोविड हो भी चुका है, या अभी करंट सिचुएशन में अगर सिम्टम है भी, और अदरवाइज भी, 3 से 5 दिन सिर्फ और सिर्फ आप तुलसी का पानी पिए। एक बोतल में बना करके रखो, सुबह से रात तक वही पानी पीना है, कोई और दूसरा पानी नहीं पीना है, क्योंकि तुलसी जो है आपके म्यूकस को डीक्लटर करती है, और म्यूकस की एब्सेंस ही इज इक्वल टू गुड इम्यूनिटी। ओके। Can gallbladder stone get eliminated through Marm Yoga? स्टोन का साइज क्या, ये डिपेंड करता है। इनिशियल लेवल का है तो डेफिनेटली हम मर्म से उस चीज पर काम कर सकते हैं। बट ये जो चीजें स्टोन वाली या किसी ऑर्गन वाली होती हैं, ये एक्चुअली में क्रॉनिक डिजीज में आती हैं, क्योंकि ओवरनाइट नहीं डेवलप होता है, ये बहुत समय लेता है डेवलप होने में। तो इसलिए इन चीजों पे काम करने में थोड़ा समय लग जाता है, 2 से 3 महीने, 4 महीने भी लग जाते हैं। बट जो पेन वाली चीजें हैं वो बहुत जल्दी रिजल्ट देती हैं। जैसे नर्वस सिस्टम वाली चीजें हैं, किसी का स्ट्रोक पेशेंट है अगर, नंबनेस है अगर, तो वो चीजों में अच्छा काम बहुत जल्दी होता है, बाकी चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। एक है 8 mm है, 8 mm Stone है का स्टोन size. का साइज। एज क्या है उनकी जिनको है? She's around 35. सॉरी? 35. 35। ओके। बहुत से फैक्टर हैं एक्चुअली जो मुझे जानने होंगे, एज, वेट क्या है, क्या लाइफस्टाइल है,
क्योंकि प्रॉब्लम को जानना बड़ा नहीं है, वो किस इंसान को है उस इंसान के बारे में जानना जरूरी है कि कितना टाइम उनको लगेगा रिलीफ आने में, क्योर होने में। एक और क्वेश्चन है काफी सारे कि हाउ टू प्रिपेयर तुलसी वाटर, प्लीज स्पेसिफाई। ओके, तुलसी वाटर को प्रिपेयर करने का तरीका सिंपल, कि आप 1 ग्लास पानी के लिए 3 से 4 पत्ती तुलसी के लें, और जब उसको गैस पर बॉईल करेंगे तो जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट तक आता है, टेम्परेचर तक आता है, तो ज्यादा बॉईल नहीं करना है, धीमी आंच पे रखना है। 10 से 15 सेकंड उसको बॉईल होने दें, फिर उसको स्ट्रेन आउट करके बॉटल में रख लेना है आपको। अब अगर पूरे दिन के लिए आप 5-6 ग्लास बनाने वाले हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप तुलसी की क्वांटिटी रख सकते हो। प्लीज सजेस्ट फॉर हाइपर एसिडिटी इन द मॉर्निंग। वेरी गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए क्लैप होना चाहिए। ओके, तो मैं अनम्यूट भी कर सकती हूँ, विनी हाँ हाँ, सकती प्लीज 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 कर दीजिए। हूँ। एक सेकेंड। See, if anybody wants to ask personal question, please raise your hand. I can unmute you. We are just keeping it fast because there are many questions. एक second. Vinny Saxena, please unmute yourself. Yeah. Yeah. Good morning, sir, and good morning, both men. Thank you very much for organizing this session. Yeah. Yes, Vineet. So please Yeah. ask your question. जी, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि मॉर्निंग में नॉट टू मी बट माय वाइफ फेसेस दिस प्रॉब्लम कि बहुत हाई एसिडिटी होती है उनको, और ऐसा लगता है उबकाई सी आती है, और काफी ज्यादा अनईजी फीलिंग होती है। तो एज क्या इसका है उनकी? उनकी एज है 40 इयर्स। 40 इयर्स। यस यस। ओके, और बॉडी वेट कितना है उनका, ज्यादा है या नॉर्मल है? आई मीन ओवर कम है, बॉडी वेट 45 है। ओके, 45 है। ओके, तो बेसिकली ये सभी के लिए है। ओके, आप सभी को सुनने की जरूरत है। यस सर। हाइपर एसिडिटी, ये जो नॉर्मल लेवल से जब बॉडी में तो एसिडिक थोड़ा वॉल्यूम। हेलो, Yeah. एम आई ऑडिबल? Yes. Yes. गिव मी थम्स Yes, अप। ओके, सो पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में एसिड रिफ्लेक्स क्यों होता है। इसका इनिशियल लेवल है कि आपका अगर नींद अच्छा नहीं है, पहली चीज तो ये। ओके, और अगर उसके बाद कोई, अगर आपका खाना एसिडिक है, अगर खाना एसिडिक कौन सा होता है? जो तड़के वाला, तेल वाला अगर हम खाना खाते हैं, या ड्राई फूड, ज्यादा ड्राई फूड मतलब कि जो लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में नहीं है खाना जो, ओके, आप उसको खाते हैं, उससे एसिडिटी डेवलप होती है। डाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि आप क्या खाना खा रहे हो, एसिडिक फूड। और दूसरा आता है कि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि अगर आपने कभी भी एसिडिटी को लेकर अगर कोई मेडिसिन ले ली, विच इज सिंपली एंटासिड। ओके, अब एंटासिड लेने से आप कर क्या रहे हो? एसिडिटी को सप्रेस कर रहे हो। लेकिन हमारी बॉडी में एसिड चाहिए हमें टू ब्रेक डाउन द फूड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एसिड चाहिए हमारा फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अगर आप एसिडिटी को ब्रेक डाउन करने के लिए एंटासिड लेते हो, तो उसी के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन नहीं होने वाला, फिर आपने एसिड को सप्रेस कर दिया। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है आपको, कि जो तासीर जिनकी ठंडी है, आप वो चीजें खाइए। मतलब अगर आप खीर बनाते हैं तो खीर ठंडी खा सकते हो। ठंडा मतलब फ्रिज में ठंडा नहीं करना उनको। ओके, तो वैसी चीजें खानी है। और एसिडिटी वाले के लिए रात के खाने में नमक नहीं डालना है, डिनर विदाउट सॉल्ट होना चाहिए। मैं तो कहता हूं उनको डिनर ही नहीं करना चाहिए। ओके, So, जैसे आपने बताया कि स्लीपलेस नाइट्स के कारण ज्यादा एसिडिटी होती है, सो हाउ टू ओवरकम स्लीपलेसनेस आफ्टर 40? ये वो सबके लिए है, ये हाँ, सबके लिए है। ये पहली सबके चीज तो लिए, हाँ। ये सबके लिए है। हाँ। आफ्टर 40 क्या, आफ्टर 30 सभी के लिए आ जाएगा। क्योंकि आफ्टर 40 उनको ये कंडीशन इसलिए आई है क्योंकि जब वो 30 के थे तब ये सब चीजें फॉलो नहीं की, इसलिए कंडीशन 40 में आई है। राइट?
इसमें चीज ये आ जाएगी कि आपका रात को एक तो खाना नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? हम दिन में खाना खाते हैं, सुबह मॉर्निंग में या लंच में, क्योंकि पूरा दिन हमें काम करना होता है, सो वी नीड एनर्जी। रात को सोने के टाइम पे कौन सा काम करना है हमें? नहीं काम करना है ना। तो ये सिर्फ हमें एडिक्शन है दिमाग को हमारे कि हम रात को भी खाना खाते हैं। तो रात को खाना नहीं खाना है, बट अगर आप खाते भी हो तो उसके अंदर सॉल्ट नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि सॉल्ट जो होता है आपको आपके ब्लड प्रेशर को वो किक देता है, स्टिमुलेट करता है, तो नींद नहीं आएगी। हम कितनी बार बोलते हैं कि खाना के बीच में पानी मत पियो। एक्चुअल में जिसके खाने में नमक होगा उसको प्यास लगेगी ही लगेगी। आधी प्रॉब्लम नमक से स्टार्ट होती है। हम ये समुद्र का पानी, ओशन वाटर क्यों नहीं पीते? खारा होता है, जितना ज्यादा ये पानी पियोगे उतनी प्यास लगेगी, उसी से प्रॉब्लम हो जाएगी। भगवान को कभी प्रसाद में भोग लगाते हैं, उसमें नमक नहीं होता है। तो ये सॉल्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो खाने में से रात को नमक निकाल दीजिए। ओके, क्वेश्चन है कि बाय नॉट ईटिंग फिर गैसेस डेवलप हो जाते हैं। वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए होगा। अगर आप किसी को चेन स्मोकर को बोलेंगे कि स्मोकिंग छोड़ दो, कोई ड्रग एडिक्ट है, तो उनको इनिशियली प्रॉब्लम होगी। इफ यू आर नॉट रेडी विद दिस इनिशियल डिस्कम्फर्ट, दैट मीन्स यू आर लैकिंग विल पावर ना। तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये डिस्कम्फर्ट कुछ दिन का रहता है, गैस बनना, ये होना, ये 2-3 दिन होगा बस आपको ऐसा। और एक और स्वीट सा क्वेश्चन है कि डिनर स्किप करे फिर भी तो नींद नहीं आएगी। मैंने बताया ना आपको, ऐसा कुछ दिन ही होगा। हाँ। ये 4, 5 या 6 दिन होगा आपको प्रॉब्लम, उसके बाद नहीं होगी फिर। So we have one more question. I'm unmuting Ananya Agarwal, so she will just ask you one question. My daughter has this skin problem which arises on the onset of summer और winter शुरू होते ही चला जाता है. I don't know what to do. Her age? 11. 11? क्या सिम्टम, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या रहती है कंडीशन? ये एल्बो के इधर इनर स्किन पे हाथ मोड़ो. जैसे ही स्वेटिंग स्टार्ट होता है वैसे ये प्रॉब्लम अराइज हो जाता है. ये कब से है? This is there since some last 4-5 years. 4-5 years? ये मुझे थोड़ा पर्सनल देखना होगा एक्चुअली, डिटेलिंग में। तो आप बाद में एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू. एक और है शनाया, I'm unmuting her. Shanaya, please you ask your question. Hello, this is Hiralal Jawar. What is the merm point for lower back pain? Lower back pain? Yeah. Okay. For all of you, I'm teaching, okay? Yeah. If this is your waistline, and this, आपका जो वेस्ट लाइन है उससे 2 फिंगर्स अप. Volume please. वेस्ट लाइन से 2 फिंगर्स अप. तो पॉइंट है आपके स्पाइन के साइड में दोनों, वो आपके बैक पेन के लिए है. ओके, और नॉर्मली बैक पेन अगर है तो स्पाइन की मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 4 वेरिएशंस पर ध्यान दें. 4 वेरिएशंस मींस फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, लेफ्ट एंड राइट ट्विस्टिंग. एक बार प्लीज आपको रिपीट करना हो. हेलो, एक बार आप प्लीज रिपीट कर दीजिए. हेलो, पार्डन अगेन प्लीज. We can't hear you. Can't hear.
क्या क्वेश्चन था, फिर से बताइए। लोअर बैक का था ना, तो एक बार आपको वापस रिपीट करना होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम में प्रॉब्लम एक्चुअली था। में जो आपकी वेस्ट लाइन होती है, वेस्ट लाइन से 2 फिंगर्स अप जो पॉइंट्स हैं आपके दोनों स्पाइन के साइड में, उनका स्टिमुलेशन से बैक एक में रिलीफ मिलता है। बट सिर्फ उतना ही नहीं करना है आपको। अभी पश्चिमोत्तानासन का मेथड बताया था कि आपको स्ट्रेट बैठ करके ऐसे आना है आगे की तरफ, फिर वापस जाना है। घुटनों पर सर को लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना जो हिंज है ये लोअर बॉडी का, उस पर ध्यान देना है कि वहां स्ट्रेच आना चाहिए, और उस पोजीशन को आप होल्ड करके रखें 5 सेकेंड्स 7 सेकेंड्स, रिपीटिशन नहीं करेंगे तो उसमें रिलीफ आ जाता है। एक और देखिए, क्वेश्चन है। Okay. पहली चीज मैं आप सभी के लिए बता देता हूं हाँ, कि जो सीक्रेट है या जो रिजल्ट है वो पॉइंट जानने में नहीं छिपा हुआ है। पॉइंट जानने के लिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो, उसमें सीक्रेट होता है कि बॉडी पर काम कैसे करेगा। अब एक रेसिपी आप 10 लोगों को देते हैं, लेकिन 10 सेम रेसिपी नहीं बना सकते। हर किसी का टेस्ट क्वालिटी फूड का अलग होने वाला है। ओके, तो इट इज नॉट अबाउट द पॉइंट। पॉइंट आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पर काम करने से अगर काम चलता तो, इसीलिए तो ये विद्या विलुप्त थी कि पॉइंट से काम नहीं चलता था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबको बताऊं, हमारे हाथ में मर्म होता है इधर सेंटर में। ओके, अब ये बात हम हर किसी को नहीं बता सकते थे यहाँ का स्टिमुलेशन करने के लिए। तो क्या बोल दिया गया कि अगर किसी को भी हार्ट स्ट्रोक आता है या ब्रेथ इश्यू होता है या कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उनको आप क्या करो, हाथ को रब करो, यही बोलते थे ना। अब रबिंग हैंड्स में क्या है ऐसा, पॉइंट यहां पर है बट हर किसी को इसका स्टिमुलेशन नहीं सिखाया जा सकता। तो जनरल बेसिस पे बोल दिया गया कि आप इसके हाथ रब कर दो ताकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। और इस मर्म का नाम है तल हृदय, बॉटम ऑफ द हार्ट। जो मर्म यहां पर है वो उसकी जो एक्सिस है वो एक इधर और एक पांव में, 4 जगह है। ओके, तो ये पॉइंट के बारे में नहीं है कि आपको मैं पॉइंट बता दूंगा उससे हो जाएगा। पॉइंट बताने के लिए प्रॉपर ये चीजें, स्टिमुलेशन की मोडालिटीज, जैसे बैक के लिए क्या बताया मैंने, मर्म योग, पोजीशन चेंज करनी है वैसे करना है, उससे वही मर्म स्टिमुलेट हो जाएगा आपका। मैनुअल स्टिमुलेशन से क्या होगा, वो ट्रीटमेंट में आ जाएगा। ओके, तो सिर्फ आप अगर मर्म योग का आसन की अपने बैक का ध्यान रखते हुए हल्का सा फॉरवर्ड बेंड बैकयार्ड बेंड करेंगे तो उसमें रिलीफ आ जाता है। क्या डिग्री तक बेंड करना होगा? अगर आप सीधे बैठे हो ऐसे नॉर्मली, तो जस्ट लाइक दिस, जितना आप जा सकते हो, जितना आपको लगे कि जाने पर आपकी स्पाइन में स्ट्रेच आने लगा है लोअर बैक में, सिर्फ उतना। हर एक आसन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, डू इट विद द ईज, आपकी बॉडी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि हो सकता है जिस आसन के एक पर्टिकुलर एंगल पे आके आपको पेन होने लगे, जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है उसको तो वार्म अप भी नहीं पता लगेगा उसमें, जो आपसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है उसको तो फील भी नहीं होगा, और जितने एंगल पे हमें पेन हो जाएगा, राइट। तो बॉडी टू बॉडी चीजें वेरी करती हैं। तो एक हमारे जो व्यूअर हैं अभी कोविड पॉजिटिव है और वो बात नहीं कर सक रहे हैं, और वो बोल रहे कि काफी हेडेक है उनको, कि क्या इंस्टेंटली हेडेक कैसे हील हो सके। एज क्या है उनकी? तो वो चैट में लिखेंगे एज क्या है, बट आई थिंक प्लीज मेंशन योर 43 एज। 43। 43। सिम्टम आई मीन कंडीशन रिकवरी पीरियड में है अभी या ज्यादा इनिशियल स्टेज है? फिर भी वो एक्चुअली बात ऑल गुड, 7th डे। 7th डे। हेडेक का बताया ना आपने? हेडेक हेडेक है काफी। तो 2 ही चीजें हैं इसमें, तुलसी का पानी, क्योंकि हेडेक नॉर्मली म्यूकस, ऑब्वियस है कि अगर उनको कोविड हुआ है तो बॉडी में म्यूकस होगा। ओके, तो उसके लिए तुलसी का पानी पिए, और जो ये 3 चीजें बताई हैं करने की, ये करें, इनफ है यहाँ का और यहाँ का करने के लिए। और एक और ऐड ऑन कर सकते हैं
कि जो हमारे आईज का एज होता है अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में, विद दिस यहां से इसका पॉइंट दबा के रखना है और छोड़ना है. ओके, दबाना है फॉर 3 seconds, देन रिलीज, प्रेस करना है, देन रिलीज. देखो, कभी भी आपकी बॉडी पे कोई एक चीज काम नहीं करेगी, बल्कि एक प्रोग्राम काम करता है, होलिस्टिक अप्रोच काम करती है. मतलब आप घर पे जो खाने वाली चीजें हैं उन पर ध्यान देते हो, फिर मर्म करते हो, तो मर्म का बेनिफिट जल्दी और अच्छे से आता है, क्योंकि इट इज ए लाइफस्टाइल. So I have unmuted Mrs. Archana. She has a question to ask. Epilepsy and tremors, sir. हेलो. Hello, यस. sir. I have a patient who has very small seizures of epilepsy and tremors. ओके, यू आर अ डॉक्टर? Yeah, I'm a therapist. I have my Like- clinic. Yeah. Is therapist as in like hypnotherapist or BP? No, yeah, no. That is mind programming and Sujok acupressure and the Reiki Okay, grandmaster. okay. Yeah, So for epilepsy, yeah. it is Epilepsy. actually my work to do in that case, because after observation I can recommend. Yeah. Very small seizures every day, only after bath. That's it. Not the whole day. Only for few seconds. That's it. Hmm. And she's very Actually- small, actually. Actually, for that there are 3 to 5 murmur points that Yeah. should be given. Yeah. Like from here, it is Shipra murm. Okay, and Yeah. then this is Indravasti, and then this one. Yeah. This I am Harika doing it. Tika. Yeah. This I'm doing it. Actually, Sujok acupressure is directly working on meridian points, Yeah. and these are the subdivision of murm. Okay. So by murm, actually, you are indirectly working on these points also. Okay. Okay. Yeah. Yeah. So yes, here, here, and here. बाकी उनका जैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग we can do that. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. And is there any theory for sciatica problem? For sciatica, Yeah. जो वेरिकोज के लिए बताया, इफ यू रिमेम्बर, एंकल मोबिलिटी. ओके, आप एंकल मोबिलिटी पर अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा है. और दूसरा आपका हिप जॉइंट. ओके, मतलब आपका जो, जैसे अगर मैं बात करूं नितंब एरिया जिसको बोलते हैं हिप एरिया. ओके, नितंब एक्चुअल में वर्ड हिंदी के बॉडी पार्ट्स का नहीं है, दैट इज द वर्ड कमिंग फ्रॉम द मर्म. इट इज अ मर्म पॉइंट. सो जिसको हम ये शेप बोलते हैं ना, हिप का साइड, दिस शेप. ओके, तो इसके लिए ये पॉइंट से आप ऐसे यहाँ का स्टिमुलेशन अच्छे से कर सकते हैं इसमें साइटिका के लिए, क्योंकि साइटिका के लिए काफी स्पेसिफिक है कि जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल रहती है उस पर काम करना होता है. जैसे कि आपकी जो काफ मसल रहती है ना, लेग्स में जो काफ मसल जहां स्टार्ट होती है बिलो नी, और जहां वो एंड होती है, वो एग्जैक्ट पॉइंट आपका साइटिका नर्व का रहता है. ये वाला अगर मैं दिखाऊं आपको, इफ दिस इज योर नी एंड दिस इज योर काफ मसल, तो यहाँ आपका साइटिका के लिए रहेगा. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पेन करेंगे, दबाएंगे, तो आपको पेन होगा ऑटोमेटिकली. ट्राई करके देखिए आप, काफ मसल का बिल्कुल एज नीचे का. ओके, एक बार आप वॉल्यूम के साथ बता दीजिए. आपके जो काफ मसल्स होती हैं, काफ मसल्स जहां पर खत्म होगी नीचे की तरफ, उस एज पर ही है पॉइंट, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंद्रबस्ती. ओके, तो बेसिकली वो, हाँ जी. ओके, सो एक क्वेश्चन ये भी स्पॉन्डिलाइटिस के लिए. आप स्पॉन्डिलाइसिस किस जगह का, नेक का, स्पाइन का, किधर का? एंक्लोजिंग एंक्लोसिस साइक्लोसिस. ओके,
ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो 101 ही ली जाती हैं या फिर स्पेसिफिक टॉपिक हैं, Okay. राइट। एक दो लाइन के अंदर इनका जवाब नहीं दिया जा सकता। हम जनरल चीजों पर बात करें, इन चीजों के बारे में आप मेरा नंबर दे सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स। प्लीज आप आपके चैट में आपका नंबर डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है कि वेदर यू टेक ऑनलाइन क्लासेस, कैन वी कनेक्ट विथ यू, एंड वी वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स दैट देयर इज अ सरप्राइज फॉर द ऑडियंस ऑफ टुडे. Mr. Deepak has agreed for a one-on-one free consultation for five members who are present today. So we will be actually posting our Google form link on our WhatsApp. So we are sending you our WhatsApp link, WhatsApp group link. हमारा Google form WhatsApp group link पर होगा. आप आपका नाम और आपका प्रॉब्लम उस Google फॉर्म में भर दीजिए, एंड जो दीपक अवस्थी को लगेगा कि दे नीड हेल्प फ्रॉम हिम, he will select 5 members from today's audience, and we will give the names of these 5 members on our WhatsApp link. तो अभी आप चैट में आपके साथ हमारा WhatsApp लिंक शेयर कर रहे हैं, साथ में Instagram लिंक भी है और YouTube लिंक भी है फॉर फर्दर वीडियोस एंड इम्पोर्टेंट स्निपेट्स ऑफ दिस सेशन. यस, सो मैं एक बार बता देता आप हूँ। आपका भी प्लीज. हाँ, मैंने नंबर शेयर किया है एक्चुअली अभी। ओके. और नॉर्मली मर्म योग कोर्स भी ऑनलाइन होता है ग्रुप्स में, और किसी का पर्सनल ट्रेनिंग या वैसे रहता है, क्लास भी होती है उस चीज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आई डू ट्रेवल ऑल्सो, लाइक किसी का कोई अगर प्रोजेक्ट रहता है हेल्थ इशू पर काम करने के लिए, तो 5 to 7 डेज का मेरा ट्रेवल रहता है कि आई विजिट देयर प्लेस, और उनका मॉर्निंग कमोड टॉयलेट से लेकर के इवनिंग बेड टाइम तक सब कुछ लाइफस्टाइल स्केड्यूल होता है। ट्वाइस अ डे उनका मर्म होता है साथ में, और उनका रेसिपी और डाइट, अग्निहोत्र, सब चीजें मेडिटेशन के साथ में होती हैं। सो लाइक विद इन 7 days वी कैन सी द विजिबल रिजल्ट। सो दिस ऑल्सो आई डू, लेकिन नॉर्मली 1 घंटे का सेशन इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, प्रॉब्लम यही है कि हमारी आज की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अप्रोच बहुत ज्यादा कम हो गई है, अटेंशन और कंसल्टेशन बहुत कम हो गई है, गाइडेंस कम हो गई है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज बहुत ज्यादा है। Okay. Better to answer individual questions personally, they are saying. Okay. तो तुलसी वाटर कैसा बनाना है तो एक बार बता तो दिया है आपने, और आई थिंक वी हैव गिवन यू दीपक व्हाट्स नंबर, बाय पॉइंट्स वी कैन, बाय व्हाट पॉइंट्स वी कैन क्लियर ब्लॉकेज ऑफ हार्ट ब्लॉकेज, पहली चीज तो ये, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इट इज नॉट जस्ट द पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में जानने के लिए नहीं है, बात है कि पॉइंट को किस तरीके से स्टिमुलेट करना है। हार्ट की ब्लॉकेज को एलिमिनेट करने के लिए अगर आप डायरेक्ट पॉइंट पर काम करेंगे तो वो है रिस्की काम, क्योंकि उसकी एक एनाटॉमी है, आप उससे काम कर सकते हैं, बट उससे हल्का और उससे इजी क्या है, हार्ट के लिए मर्म यहां होता है आपका रिब केस के बिल्कुल नीचे। ओके, ये रिब केस के बिल्कुल नीचे, इसको बोलते हैं हृदय मर्म। लेकिन इस पर डायरेक्ट काम करना इनकम्प्लीट है विदाउट वर्किंग ऑन योर निपल्स। इनको बोलते हैं स्तन मूला। स्तन मीन्स निपल, मूला मीन्स रूट्स। इस पॉइंट को ये स्टिमुलेट करते हैं। ओके, नाउ द सेकंड इज आप कार्डियो करें, और दूसरा अगर कपालभाति नहीं हो सकता है उससे भी अच्छा है कि जोर से हंसो, और हंसना ऐसा होना चाहिए कि आपके घर वाले परेशान हो जाएं, लोगों को पता लगना चाहिए कि आप हंस रहे हैं जोर से, वो आपके हार्ट की ब्लॉकेजेस को एलिमिनेट करेगा। मैं स्माइलिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, हंसने की बात कर रहा हूं, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में, स्माइल करने में और हंसने में। खुल के हंसना चाहिए, आप जितना खुल के हंसते हैं आपका
जो लंग्स हैं वो भी क्लीन होते हैं। ये जो हमने म्यूकस की बात की थी ना अभी, कि कोरोना के केस में म्यूकस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तुलसी का पानी बताया। अब उसमें आप ऐड ऑन कर लीजिए कि अगर आप जोर से हंसते हैं या हाफते हैं, देखो हमारे जो लंग्स होते हैं ना वो एक गाड़ी के कार्बोरेटर की तरह होते हैं या एसी के फिल्टर के जैसा। अगर वहां पर ब्लॉकेज है, डस्ट है, तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, राइट? तो उनको क्लीन करना होगा। तो अगर आप सोचें कि हम प्राणायाम करेंगे जंगल में बैठ के, उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपके लंग्स क्लीन नहीं है। मतलब आप ऑक्सीजन बाहर से बाद में लेंगे, पहले आपका जो बॉडी में ऑक्सीजन लेने के बाद, क्योंकि बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो अंदर क्या बनता है, CO2। वो एलिमिनेट कैसे किया आपने, अब आप खुद देखिए। अभी हम बैठे हुए हैं नॉर्मल सेशन में बात कर रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि आप फुल कैपेसिटी से ब्रीद इन करके देखो। नाउ एक्सेल। हमने जितना अभी इनहेल किया, दिस इज अवर एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, राइट? इट इज गिवन टू अस, बट क्या हम लोग दिन भर में इसका यूज करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक सर्वाइवल स्किल है, जैसे कि रनिंग। वी कैन रन बट वी आर नॉट मेंट फॉर रनिंग। रनिंग हमारे लिए एक सर्वाइवल का स्किल है, हमें भाग सकते हैं बट भागते नहीं रहना है, बॉडी अब्यूजिंग हो जाएगा। आपने एक किसी डॉग को देखा होगा, कभी वो भाग करके आएगा तो बैठ के क्या करता है, हाफता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा वो ऑन द स्पॉट मर जाएगा। उसका जो ब्लड अंदर से टॉक्सिक हो गया है, ऑक्सीजन कंबस्ट हुआ है, ही हैज टू एलिमिनेट दैट ब्लॉकेजेस। जैसे हमारे घरों में वेंटिलेशन होती है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सफोकेशन हो जाएगा, राइट? सेम आपके लंग से वो CO2 निकलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक तुलसी का पानी रहती है जिसमें म्यूकस नहीं बनता, और दूसरा आप जोर से हंसो। बहुत ही ओके? इजी, बहुत ही इजी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है, आजकल हंसते कहाँ हैं लोग। Any tips for cancer patient? कैंसर पेशेंट, द वन हु इज ऑलरेडी ए पेशेंट, Yeah, is already infected with cancer. अगर उनका कीमोथेरेपी हुआ है तो उसके लिए मैं उनको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी रिकमेंड करूंगा। किसी का अगर कीमोथेरेपी हो हाँ, चुका है, हाँ, so I would recommend hyperbaric oxygen therapy. Okay, it is the oxygen chamber जो कि atmospheric pressure में आपकी बॉडी को 100% ऑक्सीजन देता है. So it doesn't wait for the hemoglobin, but that will directly diffuse in your blood. So it would be like a rainy season for your blood of oxygen. So that you can heal faster. But otherwise डायबिटीज है या कैंसर है, आप ऑक्सीजन वाला खाना खाइए जिसके अंदर प्राण हो। मैं ऑक्सीजन से पहले बात करता हूं, हमने सेशन की स्टार्टिंग किससे की थी अगर आपको याद है, प्राण से। प्राण किसके अंदर है अभी आप खुद बता देंगे। एक मैंगो फ्रूट है, आप मार्केट से लाते हो, आज खाएंगे ठीक है, वरना 2-3 दिन में वो खराब होने वाला है। और एक मैंगो की फ्रूटी आती है, पूरा 1 महीना ठीक रहती है, वो खराब नहीं होगी। बट उसके डिफरेंस क्या है, उसके अंदर कोई प्राण नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक है वो 3 दिन में खत्म हो रहा है, अपने आप वेस्ट हो जाता है। तो आप वो चीजें खाइए जो ऑक्सीजन रिच हैं। मतलब क्या आता है इसके अंदर, रूट्स, ओके, कंद मूल पुष्प फल तोय, मतलब जड़ें, जो जो सब्जियां जमीन के नीचे लगती हैं, कंदमूल जिसको बोलते हैं। सेकंड कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके। उसके अंदर फिर जूस आता है, कोकोनट वाटर, सबसे टॉप लेवल पे आता है व्हाइट एश गार्ड जिसको पेठा बोलते हैं, वो रिप्लेस कर सकता है मिल्क को, ओके। सैलेड खाओ, मतलब कि आप राइस या दाल जो होती है, चपाती जो होती है, इनको दिन में एक बार थोड़ा कम क्वांटिटी में खाइए, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन जरूर है बट ऑक्सीजन नहीं है। जिस खाने को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हम ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं, दालों को प्रिजर्व करते हैं ना, उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। जो फ्रेश फूड रहता है उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो आप वही लीजिए। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जितना अच्छा आएगा आप रिकवरी कर जाएंगे। बाकी तो मर्म योग है, छोटे मोटे आसन बहुत ही आराम से करने वाले, आप बेनिफिट डबल अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे उनसे। क्योंकि एक्चुअली में मर्म का एसेंस क्या है, इस विद्या का सार क्या है किसी को देने का, मैं सही बताऊं अगर,
तो आप लोग गूगल कर सकते हैं प्रोफेसर राममूर्ति। ये छोटी सी स्टोरी है, सुनना चाहेंगे आप? Yes, please. आर यू एक्साइटेड? Yeah, अगर we नहीं are भी सुन- excited. We know we are out of time, but we are excited to learn ओके, more. सो बेसिकली प्रोफेसर राममूर्ति हैं एक रेसलर। ही वाज पॉइजन्ड, उनको पॉइजन दिया गया था, बट उनका ब्रेथ वर्क और एक्सरसाइज इतनी अच्छी थी कि वो अपनी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम से वो जहर को बाहर निकाल दिया था, पुशअप्स और सिटअप्स करके। तो एक्चुअल में मर्म विद्या आपको केवल हेल्दी बनाने के लिए नहीं है। हेल्दी मतलब क्या है कि अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीमार हैं, हेल्दी कैसे बने, तो उसके बाद का जो लाइफ है उसका क्या करने वाले हो? अपने आप को इतना कैपेबल क्यों नहीं बनाते कि अगर बॉडी में कोई वायरस आता है तो वो खुद निकल जाए ना। हम उस चीज की बात करें तो उस लेवल तक जाना है हमें। ओके, कि बॉडी आपकी टॉक्सिन्स को खुद निकालती रहे। अगर आपकी किडनी अच्छे से अपना काम करती रहेगी तो स्टोन नहीं बनाएगी वो। अगर आपका यूट्रस, लीवर, सब चीजें अगर सिस्ट क्यों बना रहा है? क्योंकि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो उनकी फंक्शनिंग अच्छे से हो जाएगी तो सिस्ट क्यों बनेगा अंदर? ओके, तो ये मर्म विद्या उसी चीज के बारे में है कि अगर आपके पास कोई हर्ब्स नहीं है, क्योंकि आप किसी जगह फॉर एग्जांपल किसी डेजर्ट में या हिमालय पर कहीं हो जहां आपके पास हर्ब्स नहीं है, कोई औषधियां नहीं है, तो आप किस तरीके से खुद को हील करोगे? अपनी इंटरनल एनर्जी से। क्योंकि विद्या वही है जो आपको ये सिखाए कि इंटरनली कैसे काम करना है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट या हेल्प के। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज में हम लोग हर्ब्स का, डाइट का यूज करते हैं, बट अदरवाइज नॉलेज ये इसी बारे में है कि अपने आप को इतना लेवल बना दिया जाए कि हमें उन चीजों के बिना भी हील कर पाए। ओके, यू आर म्यूट। आपको अनम्यूट करना होगा, द वाइट और So I think there's one more question, but अगर आपको लेना है तो but I think the session has gone actually half an hour more. So आपका नंबर हमने सबके साथ शेयर किया है। इतना हेल्थ इश्यूज है सबके कि क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे, but टाइम को ध्यान में रखते हुए I think we should end this session. There is one last question we'll take because अभी just आया है। I was regular yoga practitioner and do pranayam daily from last so many years. Still, I got fever 2 days ago. Was I doing something wrong? So that's a No. नो, that's a योगा हमें अमर बनाने के लिए नहीं है। अगर आपने न्यूज देखा हो 2 साल पहले जो रामदेव के साथ आचार्य बालकृष्ण है, उनको हार्ट अटैक आया था। अगर न्यूज देखा हो, अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो, अक्षय कुमार को भी कोरोना हुआ है, और मुझे भी बैक एक या फीवर हो जाता है। ये आपको अमर बनाने के लिए नहीं है। ये नॉलेज आपको किस चीज के बारे में है कि जब कभी प्रॉब्लम आए तो आप अपने आप को ट्रीट कैसे करें। ये आपको स्ट्रेंथ देने के बारे में है कि प्रॉब्लम को बियर कैसे कर लें। इसलिए इसको विद्या बोला है। ओके, तो फीवर अगर आता है तो उस कंडीशन में सिर्फ आप रेस्ट करें और बॉडी में जो डिस्कंफर्ट आ रहा है उसको आने दें, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर ट्रीटमेंट जितना लंबा होगा बॉडी के लिए उतना ही गलत हो जाएगा। So we just have a thank you note. We can't thank you enough for जो भी आपने हमको knowledge दिया है, और with so much ease, staying at home in such little time and no medication, not costing much, और क्या चाहिए हमें। बट हमारे लिए मिस्टर दीपक वत्स ने एक सरप्राइज दिया है कि he has agreed for 5 free one-on-one consultation for today's audience. Please fill the form and mention your problem. He will choose the ones that might need his help. Forms will be available on a WhatsApp group link. हमने लिंक भेजा है, साथ में इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का भी लिंक है। जो फर्स्ट लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। The name will be announced on the group. The greatest medicine, I would like to say that the greatest medicine of all is to teach people
how not to need it, how not to need the medicine. Thank you, Deepak Vats, for telling us how not to need the medicine. The goal of this session was not to heal others, but to inspire them to awaken the healer within them. Because God could not be everywhere, He made sure that we have people like Deepak Vats who have the gift of healing mankind. Deepak Vats, may you continue to be a blessing to others with your art and profession. May you reach out to as many people, this also being the mission of the White Aura. It was great privilege and an unforgettable experience to have you on the White Aura. Thank you. Friends, listen to what your body is telling you and thank your body for being a perfect messenger. Please like and subscribe our YouTube channel and follow us on Instagram for videos and important snippets from the session. Also join our WhatsApp group for the forms and further announcements. Thank you all for being there. Thank you. Thank you, Deepak, Deepak. once again. Thank you.